This session expert is, or should I say, resource person is Mr. Vimlesh Ghudeshwar. He is a filmmaker, screenwriter, and an Urdu poet. He has graduated from Satyajit Ray Film and Television Institute of India in direction. He has graduated from Satyajit Ray Film and Television Institute of India in direction and screenplay writing. Mr. Vimal has written and directed many short films, music videos, and documentaries, and also guiding upcoming filmmakers. He has also worked creatively with noted directors and helped them achieving their vision by writing screenplays for noted filmmakers. He has written a feature-length film, which is currently streaming on MX Player. Mr. Vimlesh has perfect knowledge and experience to talk about today's topic, that is hands-on writing. Sir, over to you. Thanks. Thank you so much, Bhanu sir, and I am welcoming to you all. This is the pleasure for me to catering or serving to the teachers, and this is the I can't express in my words कि इतनी अच्छी और इतना अच्छा अवसर मुझे मिला है कि जहां मैं शिक्षकों को अपने अनुभव जो है वो साझा कर सकूंगा और मैं उनसे कुछ बातें कर सकूंगा और उनसे उनसे मैं ये कह सकूंगा कि मैंने अपने अनुभवों से जो चीज़ें निकाली और ढूंढी जानी और कोशिश की कि उसे मैं ना सिर्फ अपनी राइटिंग में, अपनी फिल्मों में, फोटोग्राफी में, अपनी पोइट्री में, अपनी ज़िंदगी में उतार सकूं। तो मैं आप लोगों से जैसे कि मैं अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि राइटिंग जो है वो क्या है, वो ऐसी चीज़ क्या है। सो हाउ डू आई started and how did I started and how it has become my part of the life and why I started this writing thing. So the thing is कि I used to write poems since my childhood, and I used to read a lot. And the thing, when you just when you start reading a lot, you actually आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिखने भी लगते हैं. So I started writing so very long before, but the thing is, writing has a different kind of forms. It's a completely the fiction writing is completely different than non-fiction. As per you all know, it's a poetry is completely different than the than the prose. So, but the literature is completely different than a visual writing, than a film writing. So, how do it differs? How do we know कि क्या है जो इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल ही अलग करती है, मुख्तलिफ करती है, डिफरेंट करती है। तो हम कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे और मैं सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल भी थ्योरी क्लास नहीं होगी। इसमें हम सीखेंगे क्लास में। हम लोग आज अभी हम लोग जानेंगे कि राइटिंग करके जानेंगे। मैं आपको बता दूंगा और आप जो है वो बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, वो एक दूसरी चीज़ है। पर मैं चाहूँगा कि हम लोग बहुत छोटी-छोटी, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हम लोग इस क्लास में करें। तो मैं सबसे पहले मेरी आवाज़ और मेरा चेहरा सभी लोगों को दिख रहा होगा एंड everybody is comfortable to hearing my voice, I think. And I want you all, because we have lot, you have 114, it's a huge amount. So how do we conclude it? So I want 10 volunteers जो लिखना चाहेंगे, हिंदी और इंग्लिश. It can be Hindi, it can be in English. So I want मैं चाहूँगा कि आप लोग चैट बॉक्स में लिखें कि जो लोग लिखना चाहते हैं आप लिखें कि I will do. Okay. So I'll make a list, and because everybody can't write and we can't see everybody's writing, so we need at least 10 writers. So it's not a writer, anybody can write, but we need 10 first. So I am writing the name first, Jayati, Sanskriti ma'am, and
Venkatesham. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. And I'm just writing your name. Venkatesha, Yes, sir. Yes, Mr. Ravi Upadhyay, sir. Randeep, sir. You also want to write Ramandeep, sir. My bad. And Ramandeep, ma'am. Ramandeep, ma'am. Okay. Okay. So Vageshwari Nandini, Lingaraj Behra. Okay. So it can be two, it can be more than 10. Annie. Hello, sir. This is Harshil Paradkar. I also sent a message. Okay, Harshil, I am writing your name also, Mr. Harshil, sir. Chandrakishore, Devesh Pratap Singh, please stop writing now. Gargi, Ipshita, Ujjwal Kumar, Sunil Kumar Sharma. Okay. So we can't write, we can't just see everybody's writing. Please stop writing now because we can't see. Please, sorry, Mr. Dr. Afaq Ahmed. Maybe you all can write, but the thing is, I can now stop writing from Afaq Ahmed. Please stop writing. We can't see everybody is writing because we have less time. But I want you all to write. Just don't just because I can't see everybody's writing. That doesn't mean that you can't write. You can write, but now I am going to start. So please be aware. It is a very interactive session. It is going to be very interactive session. Please connect with me on the chat, and whatever I am saying, please आप लोग इसका reply करें, इसे बताएं, इसे बात करें. जैसे जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर मैं कुछ पूछूं तो आप उसे बताएं, क्योंकि मैं चाहूंगा इसे हम इंटरेक्टिव थोड़ा सा बनाए, इसे हम जाने. अब हम स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों से ये स्लाइड शेयर करता हूँ. भानु सर से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो मुझे शेयरिंग का जो है मुझे परमिशन दे दीजिए. जी सर. सलभ सर. ओके, थैंक यू. दे दिया. ओके जी, थैंक यू सर. थैंक यू सर. क्या आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी? ये एक बहुत ही फेमस पोएट की फोटोग्राफ है जिन्होंने उन्होंने ली थी. इनका नाम अब्बास कियारोस्तामी था. मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ. He was an Iranian filmmaker. He is a very known Iranian filmmaker. So hands-on writing and मुझे चैट बॉक्स ऑन करना होगा ताकि आप लोग के चैट मुझे दिखाई दे सके. यस. ओके. किसी को आप लोगों में से किसी को भी स्क्रीन देखने में कहीं दिक्कत हो तो वो चैट बॉक्स में मुझे बताएं और या हम उसे टेक्निकली देखें. सो माफ कीजिए, एक सेकेंड आपको मैं रोक रहा हूँ. ओके. सो व्हाई डू वी राइट बिफोर शूटिंग? Why we do we write before shooting? Why this is a very needful to write before shooting? क्यों हमको लिखना है शूट करने से पहले? हम सीधे शूट क्यों नहीं कर रहे? उसके बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजंस है. उसमें से एक रीजन ये है कि सबसे पहली जो सबसे ज्यादा अहम बात है कि जैसे मैं आपसे कोई बात कहूं तो वो जब मैं किसी से कम्युनिकेट करूं तो वो कुछ और हो जाती है, और उसके बाद मैं वो किसी और से कम्युनिकेट करता है तो कुछ और हो जाती है. तो इसीलिए हम स्क्रीन प्ले में या स्टोरी में या जो भी हम राइटिंग में, फिल्म की राइटिंग में हम प्रेजेंट करते हैं, हमें उसे लिखते हैं. फिल्म को शूट करने से पहले लिखा जाता है ताकि जब हम शूटिंग पर जाए तो किसी को भी, क्योंकि इतने हजारों लोग हैं, अगर आपने किसी से कह दिया कि एक बॉक्स ले आइए तो कितने ही तरह के बॉक्स प्रॉप डिपार्टमेंट के लोग ला के रख देंगे. अगर
देंगे तो कितनी ही तरह की पेंसिल ला के रख देंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्पेसिफिक हो, इसलिए लिखना जरूरी है ताकि आप सभी को सेम चीज कन्वे कर सके और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये सबसे ज्यादा अहम है जिस कारण हमें लिखते हैं। दूसरी चीज, बार बार क्यों लिखते हैं? अगर एक बार लिख दिया है तो उसके बार बार ड्राफ्ट क्यों बनते हैं? ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि बार बार उसके ड्राफ्ट क्यों बनाए जाते हैं, क्या क्यों है, कि ताकि हम विजुअल की बारीकियों को समझ सके। अगर आप किसी चीज, जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो मैथ्स बिल्कुल बिना लिखे कर सकता है? You have to write down, right? If you are doing maths, you have to write it so many times, and you can't do math without writing. As same as in films, you can't think visually, or you can't just imagine visually without writing. And the mostly important thing is you have to write correctly, because you have to think correctly. So writing makes your thinking correct. अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे लिखते आपको जो बात 4 सेंटेंसेस या 5 सेंटेंसेस में आप कह रहे हैं वो आप 1 या 2 में कह सकेंगे, आपका स्पेस बचेगा। और क्योंकि आपकी जो स्क्रिप्ट है या आपका जो लेखन है वो कोई राइटर भी पढ़ सकता है, और उसे कोई एक्टर भी, उस एक्टर को भी पढ़ना होगा, और उसे स्पॉट बॉय भी पढ़ेगा, क्योंकि उसको भी पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं। उसे हो सकता है कि कोई और भी ऐसा व्यक्ति पढ़े जिसका फिल्म से कोई सरोकार ना हो। सो बिकॉज it's going to be read by everybody, you have to write in such a format so everybody can understand very easily. So that's why we write before shooting. आप लोगों को शायद समझ में आया होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों लिखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। So we are going to do a warm up exercise. So please the volunteers, 10-15 volunteers, प्लीज आप वार्म अप एक्सरसाइज को ध्यान रखिए। ये वार्म अप एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं। ये वार्म अप एक्सरसाइज जो है हर राइटर, हर किस्म का राइटर करता है, और इसे करते रहना चाहिए। वो क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और कुछ लोगों की एक्सरसाइजेस हम देख पाएंगे जो भी हमें पहले भेजेगा, और उन लोगों की एक्सरसाइजेस हम देख सकेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ी जल्दी से एक्सरसाइज को भेजें। तो सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम अपने 5 सेंसेस को थोड़ी जगह देंगे। सो you have to write 5 things you are seeing. Try to write a little specific, try to write a little more in detail, just write about the thing. Then write the thing. It can be a pencil, but what kind of pencil it is. So 5 things you are seeing, 4 things you can touch. 4 things you can touch, and 3 things you can hear. Write a 3 sound you are hearing, or you might hear, because you must be at your home. So कोई 3 ऐसी चीजें जो आप सिर्फ सुन सकते हैं, आप उन्हें लिखें। 2 things जो आप स्मेल कर सकते हैं, और 1 जो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको ये लिखना है। अब हम पूरी तरह से और सिंसियरली इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं, इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड प्लीज स्टार्ट डूइंग एंड लेट मी नो, आई विल गिव 5 मिनट। सो प्लीज अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर जो 5 थिंग्स हैं, दिस इज जयती गुप्ता स्पीकिंग सर। ये हमें अपने सराउंडिंग्स में लिखना है, या जो आपने पिक हम लोग को रिप्रेजेंट करे उसमें से बोलना है? आप पिक रिप्रेजेंट करें ना? नहीं, आपको अपने सराउंडिंग में, अपने सराउंडिंग में, जैसे 5 थिंग्स लिखे हैं देवेश सर। Toward sky vehicle shop. So I want you all to write what kind of shop, what kind of vehicle. Yes, sky, I know sky is specific. You can write a cloudy sky, you can write a blue sky,
you can write a Paddy Road, you can write a kindergarten school. So are you all getting me? It's a little specific, but I 4 things: animal, human, a ball, bat. Okay, what kind of animal? Specific. So you can with your green pani ki bottle. Sunil has written Chashma Road, Chashma Red. एटलीस्ट इमेजिन कि ये बुक जो है ये येलो कलर की है. और you can write the rectangle, you can write a circular book, bronze tumbler with water. Nice. 5 things I can see: laptop, painting, mobile phone, pencil, ruled copy. Good. Ruled copy. I really like the ruled copy. Balcony, garden, closed society, temple, young neighbor, family, small bird. Great. So you all are writing, chirping the birds, barking the dogs. Ramandeep sir ने लिखा, I can see my room, my daughter, laptop, fruit basket, a yellow, a basketball. 5 things you are seeing. You can write in Hindi also. So people who are comfortable in Hindi, please write in Hindi. आप हिंदी में भी लिख सकते हैं. Wooden door, cream, cupboard, long window curtain, बहुत सुंदर. Floral wall painting, बहुत बहुत सुंदर. Okay. Mango taste में लिखा है मिस्टर राजेंद्र सर से. और smell, fragrance of rose, very nice. Okay. वागेश्वरी नंदिनी आपने लिखा है a notebook with a notebook with yellowish pages with fine black horizontal lines drawn on it. A yellow pen with silver lines drawn on it. Pillow cover with floral print on it. बहुत बहुत सुंदर. Sound of AC, speaker voice, room freshener. You can. Sir, I have done all of them. Great. Jayati Gupta. So 5 things which I can. I am reading and I am. Jayati ma'am, please, I'm interrupting you. Sorry. I am just reading out so that everybody can hear it. Please don't. You don't speak. So I can because it's a warm-up exercise. So we are going little more exercises. So please. I'm just reading. Gargi Mishra, my phone, the chair, I'm sitting on it, pages, charges. Okay. उज्जवल कुमार ने लिखा रोड पर चलती हुई काली बाई, सब्जी बेचता आदमी, ब्रश करता बच्चा, पेड़ में लटका आम, रोड क्रॉस करती बिल्ली. Okay. So I am going to stop here. Please stop here. And I am believing that you actually know the purpose of these 5 things, 5 senses. You actually awakening your 5 senses. Now you can write. So lot of people I think started writing. So let's now we move on. So please stop writing. I can, but I'm going to see the last one. Water bottle, teacup, switchboard, pen, laptop, 5 things I can touch, keyboard, diary, chair, pen, 3 things I can hear. I can hear raindrop, fan sound, 2 things I can smell, tea, agarbatti. Agarbattis I really like. मनीषा उपाध्याय मैम ने लिखा है बारिश की बूंदे here. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया. हम आगे बढ़ते हैं. Okay, so this is the very very important thing.
मुझे 1 सेकेंड आपको देना होगा, कुछ टेक्निकल एरर है। Vimlesh sir, can we help in your technical area? सॉरी, पता नहीं क्या हुआ है, ये वीडियो जो है स्टॉप हो गया, हैंग हो गया एक्चुअली। आई डोंट नो। ओके, आप शेयरिंग स्टॉप कर सकते सर फॉर अ सेकेंड? Shalabh sir, can we stop sharing? Yeah. Yes. Again, give the permission to share the screen. Vimlesh sir. Shalabh sir, please. नहीं परमिशन अलग से देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन। Okay, fine. ओके, अब आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, विजिबल नाउ। Yes, it's visible. मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों को रुकना हुआ। आगे हम बढ़ते हैं, जिससे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि व्हाट इज योर इमेज। हम कैसे समझते हैं कि हमारी कौन सी इमेज है? इतनी सारी डिफरेंट इमेजेस है, और हम कैसे समझे कि हमारी कौन सी इमेज है? और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप कोई और दूसरी इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। आपके पास कोई और दूसरी इमेज पैदा नहीं हो सकती है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप एक बाइक चलाते हुए लड़के को इमेजिन करें, तो आप ध्यान से देखिए कि आप किसको इमेजिन कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने अभी अभी एक बाइक चलाते हुए बच्चे को इमेजिन किया होगा, पर वो आपने उस बच्चे को कहीं ना कहीं देखा होगा। ऐसा कोई भी इमेज नहीं है जिसे आप कहीं और से लेकर आएंगे। ऐसी कोई भी इमेजिनेशन नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक गली में एक बच्चा खेल रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चैट बॉक्स में कि क्या वो गली कौन सी है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो गली, आपने कौन सी गली इमेजिन की? बिल्कुल, मुझे आप लोगों के चैट बॉक्स देखने होंगे। तो किसी ने लिखा है पराठा वाली गली, अविनाश नगर, कॉलोनी की गली, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। सो एवरीबडी इज इमेजिंग व्हाट दे एक्चुअली हैव सीन। आप मेरी गली इमेजिन नहीं कर रहे। आई लैंड नेक्स्ट टू माई अपार्टमेंट, ऑफ कोर्स everybody can imagine only the thing which they actually have seen in somewhere. अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एकदम पुरानी गली जहां पर मिट्टी के घर बनेंगे, तो आपको क्या याद आएगा? ऑफ कोर्स आपकी बचपन की गली याद आएगी, आपको आपकी नानी के घर की गली याद आएगी, आपको किसी और की इमेजिनेशन नहीं। मैं अगर गांव की गली आपको याद आएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि वो जो बच्चा है जो बाइक पर जा रहा है, मैं आपसे कहूं कि एक यंग लड़का है जो बुलेट पे जा रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या इमेजिन हुआ? कौन है वो लड़का? क्या आप बता सकते हैं कि वो किसको इमेजिन किया आपने? किस लड़के को आपने इमेजिन किया? जो हमारे मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में जो रहते हैं, जो कबीर रहता सिंह, है युवा जो कॉलेज पढ़ता वो जा रहा है कॉलेज बुलेट। स्टूडेंट। पर वो जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो संदीप जी ने लिखा है कॉलेज स्टूडेंट, और भी किसी ने लिखा है कॉलेज स्टूडेंट, वो कौन है? वो उसका चेहरा कौन है? वो आप ध्यान से देखिए अपनी इमेज को। मैं खुद। आप खुद है। किसी ने लिखा माय ब्रदर, हमारे मोहल्ले का सरदार लड़का। किसी ने लिखा है मंजू। किसी ने लिखा है माय नेबर्स किड, पड़ोसी का बेटा।
ऑफ कोर्स आप वही इमेज, मैं कुछ भी इमेज आपको दूंगा, मैं कहूंगा कि एक पेड़ से आम लटक रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आपको वही इमेजिनेशन आएगा जो आपने देखा होगा, ना कि सिर्फ वही इमेजिनेशन आएगा, बल्कि वही एंगल भी आएगा जो आपने बार बार देखा होगा। अगर आपने नीचे से देखा होगा उसको या आपने चढ़कर देखा होगा उसको, तो your mind actually capture and store the images what you have seen many times. More and more you watch your image, and the mind is like a hard drive which can actually store all your images. Okay, and stop writing. So now we should move on a little bit कि ये जो हमारी इमेज है, अब अपनी इमेजेस को समझिए, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। अगर आपको अपनी इमेजेस समझ में आई तो आप जो भी कहानी लिखेंगे वो आपकी और सिर्फ आपकी होगी। वो किसी ने बहुत सारी चीजें, सब चीजें नहीं देखी होगी। जो गार्डन आपने देखा होगा, जो इमेज आपने देखा होगा, जो इमेज आप देखते वो कोई और दूसरा नहीं देखता। तो मेरे ख्याल से आपको आपकी इमेज समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ताकि हम जो है समय का थोड़ा उपयोग कर सके और अच्छे से। एक्सक्यूज मी सर जी, इसका मतलब कि अगर हम किसी और को अपनी इमेज दिखाना चाहते हैं जी, तो हमें उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी ज्यादा रखनी पड़ेगी, इतनी जी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जी। रखनी पड़ेगी कि उसको हमारी इमेज नजर आए। उसके course. डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है, एडजेक्टिव्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। एडजेक्टिव के अलावा अगर आप इसके, मैं बताऊंगा आपको कि आपको कैसे लिखना है। वी आर गोइंग टू डू दैट एक्सरसाइज इन हियर ओनली, so we'll go bit by bit so that you can understand how do you can write and how we should write if you are going to portray your perfect image to somebody else, जो कि आपको, अगर आपकी इमेज जो है वो मिसकम्युनिकेट ना हो जाए। और इमेज का मिसकम्युनिकेट होना आसान भी है, पर अगर आपने पर्टिकुलरली स्पेसिफिक किया तो हो सकता है कि आपकी इमेज जो है 70-80% चले जाए, फिर भी इसमें 20% एरर रह जाए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को प्लीज आप बचा के रखिए। हम लोग अब बाद में बात करेंगे, पर एक आध क्वेश्चन मैं ले सकता हूं, पर हम लोग धीरे धीरे पहले आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि पहले बेसिक समझते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को वो सब पता होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो स्टोरी का एक ढांचा है, और वो स्टोरी हम किस तरह की स्टोरी को और किस तरह की स्टोरी के इमेजेस को हम समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ स्टोरी, और आपने सबने देखा होगा, सुना होगा नैरेटिव के बारे में, और मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। तो स्टोरी में नैरेटिव होता है, पर ये तो नैरेटिव होता है कि भाई एक कहानी शुरू होती है, कहानी कहीं खत्म हो जाती है, एक नैरेटिव है। हमको जब हमारी दादी नानी बचपन में कहानियां सुनाती थी तो उसमें भी एक राजा होता था जो आखिरी में मर जाता था। ये कहानी आगे बढ़ती थी और कहानी का कोई शेप, कोई ढंग, कोई रंग होता था। पर कुछ नॉन नैरेटिव भी कहानी होती है। नॉन नैरेटिव क्या होती है? जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, it doesn't have a particular shape. In particularly there is no shape, but it can be shaped differently. और फिल्म होती है, सीरियल फिल्म में नैरेटिव का, जो हमारा मुख्य धारा का नैरेटिव है, जो हम मेन स्ट्रीम में नैरेटिव को समझते हैं, जो एक मामूली इंसान जिस बेसिक नैरेटिव को समझता है, वो बेसिक नैरेटिव नहीं होता सरलिज्म में। बट सरलिज्म हैज इट्स नैरेटिव इटसेल्फ। सरलिज्म में एक अपना नैरेटिव जरूर होगा, उसमें एक अपना शेप जरूर होगा, और हो सकता है कि कोई एक सीरियल फिल्म एक दूसरी सीरियल फिल्म से बिल्कुल अलग हो। पर नैरेटिव में ऐसा नहीं होता। नॉन नैरेटिव में एक और चीज होती है जिसको आप एक्सपेरिमेंटल सिनेमा कहते हैं। इसमें भी कोई शेप कोई नहीं होता, पर इसमें जरूर एक चीज होगी कि इसमें एक अपनी तरह का एक शेप होगा। तो ये सरलिज्म और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है, पर हम लोग अभी उसके बारे में बात नहीं करने वाले। मैं आप लोगों को आज बताने जो वाला हूँ वो नैरेटिव के बारे में बता रहा हूँ। वो नैरेटिव आप जानते होंगे, लीनियर एक नैरेटिव होता है जिसमें शुरुआत होती है, उसका मध्य होता है, उसका आखिर होता है। तो लीनियर उसे कहते हैं, जो लीनियर सिनेमा की शुरू होती है फिल्म, और फिर और जहां खत्म होना होता है वहां खत्म हो जाती है। पर जो एक चीज होती है जिसे आप नॉन लीनियर कहते हैं, नॉन लीनियर उसे क्यों कहा जाता है? और से शुरू होती है और वो कहीं और खत्म होती है। उसका शुरुआत, मध्य और अंत जो है वो अपने आप में शफल होता है। जैसे आपने रॉकस्टार फिल्म देखी हो, तो रॉकस्टार में
वो फिल्म कहीं से शुरू होती है, फिर कहीं बीच में पहुंच जाती है, और फिर से वो शुरुआत के हिस्से दिखाने लगते हैं, फिर वो बीच के हिस्से को दिखाने लगते हैं। अब उसके अलावा पर आप लीनियर में, आप लोगों को फिल्म याद आ रही है, जो जीता वही सिकंदर फिल्म, लीनियर पीरियड सर 10 कहानियां फिल्म याद आ रही है आप लोगों को? 10 10 कहानियां कहानियां, और अलग अलग कहानियां हैं। फोटोग्राफ करके जो एक फिल्म है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, दैट इज ऑन जी। नॉन लीनियर नैरेटिव। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बेसिकली नॉन लीनियर और लीनियर नैरेटिव से बाहर नहीं होती, पर वो एक फिल्म को दिखाने का, उसको प्रेजेंट करने का तरीका है। पर नॉन लीनियर और लीनियर दोनों ही जो होते हैं वो एक्ट स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। एक्ट स्ट्रक्चर से जुड़े होने का मतलब कि एक पर्टिकुलर एक्ट शेप में होते हैं, चाहे वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो सकता है कि कहानी का मध्य जो है शुरू में दिखा दिया जाए या अंत शुरू में दिखा दिया जाए नॉन लीनियर में, पर जो अंत शुरू में दिखा दिया जा रहा है वो कहानी का शुरू बन गया है। अंत को शुरू में दिखाया, पर जब हम देख रहे हैं अंत को शुरू में, तो अब ये इस कहानी में इसका अंत जो हम शुरू में देख रहे हैं, अब यही हमारे लिए शुरुआत है। तो पर दोनों ही एक्ट स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं। ये आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें बिगिनिंग होती है, मिडिल होता है और उसमें एंड होता है। ऑफ कोर्स जो है सरलिज्म और इसमें भी बिगिनिंग मिडिल एंड होता है, पर कभी कभी मिडिल की कोई जरूरत नहीं होती, कभी कभी एंड की कोई जरूरत नहीं होती। पर हाँ, और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी एक फील जरूर देगा आपको, एंड का एक फील जरूर, दिस इज गोइंग टू बी स्टार्ट, दिस इज गोइंग टू बी अचीव, दिस इज, बट करेक्टली उसका शेप अपने आप में अपना और खुद का हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको स्टोरी की चीजें थोड़ी सी समझ में आई होगी। ये बहुत ही बेसिक है, इसको ऊपर बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम और कुछ चीजों पर बात करते हैं। अब हम जो विजुअल एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, पर हम विजुअल राइटिंग चीज को समझना है कि हम विजुअल राइटिंग को किस तरह से करें। अब क्योंकि विजुअल राइटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है सिनेमा को समझने के लिए, सिनेमा को जानने के लिए, हम इसे कैसे करें और इसे कैसे किया जाता है, मैं आपको एक पोइट्री के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूंगा। हम कुछ चीजों के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, ये सामने रखना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा फ्रेज है, हमेशा राइटिंग में ये चलता है, सिनेमा में हमेशा से चलता है, ये शोइंग इज टेलिंग। आप जो है बोलिए, आपको दिखाइए, वो कन्वे हो जाएगा। शोइंग इज टेलिंग पर कैसे, क्या कैसे शो करना है और उसको शो करने के कौन से मापदंड है, व्हाट इज द मीडियम एंड हाउ डू आई शो। तो जैसे कि अगर मैं कहूं बट ब्यूटीफुल डे इन कोयम्बटूर इज कंप्लीटली डिफरेंट, एंड ब्यूटीफुल डे इन भोपाल इज टोटली डिफरेंट, एंड ब्यूटीफुल डे in Indore is slightly different, or somebody in Nagpur or Kolkata is different. It's actually based on your culture, your community, maybe the location, but it's a beautiful day. If I'm saying it's a beautiful day, अगर मैं कहूँ ये बहुत ही खूबसूरत दिन है, ये तो कुछ भी हो सकता है, पर वो खूबसूरत दिन क्या है, how do I show कि ये खूबसूरत दिन है। नहीं, मुझे मैं ऐसा कह के मैं नहीं कह सकता हूँ कि खूबसूरत दिन मैंने बोल दिया, मुझे बताना पड़ेगा कि वो खूबसूरत दिन मेरी नजर में क्या है। कैसे बताएंगे आपकी कोई दिन खूबसूरत है? अगर हो सके तो कोई कहेगा कि मैं दिखाऊंगा कि 2 बच्चे केले का पत्ता ओढ़ के बारिश में खड़े एंड दे आर एंजॉयिंग, मे बी दिस कैन बी अ ब्यूटीफुल डे फॉर इन राजस्थान, because it rains very less over there, right? So अगर मुझे दिखाना है कि भोपाल में कोई ब्यूटीफुल डे, मे बी आई एम गोइंग टू शो द लेक और somebody is going into the lake or somebody is rowing or anything else, but I have to show an image कि हाँ ये मेरे ब्यूटीफुल डे का या मेरी ब्यूटी का जिसको मैं बताना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ सुंदरता, तो मेरे पास इसका एक इमेज है, वो इमेज मेरा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले इमेज के बारे में बात की।
आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके चैट पढ़ लेता हूं थोड़ा सा, ताकि मुझे किसी खेत की हरियाली का दृश्य, अ ब्राइट सनी डे, ओके। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, एंड you all that it can't be anything, you can't imagine anything which you haven't seen. So whatever fiction is, you have actually seen the fiction. So see भोपाल के सीएम हाउस के पीछे के बहता हुआ झरना can be a beautiful day का इमेज हो सकता है, और a sunny day where two children are going to school in a sunny day. It can be a beautiful image for anybody. So now what else we can do, what else we can show? आप मुझे एक सेकेंड और दे दीजिए. So, and how do we write our image beautifully? So the thing is, you have to write the action. ये क्या हो रहा है? एक्शन मतलब कोई अगर सैड है तो वो सैड होके बैठ नहीं जाता है, वो सैड होके कुछ कर रहा होता है. आप भी जब आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप सैड हो रहे होते तो आप कुछ कर रहे होते. क्या एक्शन है? कोई अगर सैड है तो क्या आपने अंदर कोई पत्थर मार रहा है? बिल्कुल. ये क्या ये हैप्पीनेस का इमेज है? नहीं. ये अकेलेपन का भी इमेज हो सकता है, ये एक दुख का भी इमेज हो सकता है. क्या एक्शन है? ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. माफ कीजिए, फिर से रुक गया है. ओके. राइट एक्चुअल विजुअल, एन एक्चुअल विजुअल, कि वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो ग्रीन है, ब्लैक है, वो क्या है, वहां पर हो क्या रहा है, क्या जो है वो दो लोग जा रहे हैं, क्या वो बाइक पे जा रहे हैं, क्या एक्चुअल विजुअल है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या वो ग्रीनरी की तरफ जा रहे हैं, क्या वो पहाड़ों के पास जा रहे हैं. यू हैव टू राइट द एक्चुअल विजुअल, व्हाट एक्चुअली इज गोइंग इज हैपनिंग, द एक्टिविटी. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी चीज के एक्शन को किसी इमेज में क्या हो रहा है इसको दिखाने के लिए. एंड बट you can't write the emotion. Yes, you can write emotion, but it should be subtly and not the feeling but the image. You have to portray your feeling from an image. You have to portray the image by the actions, by the activity, and by the actual visual. So we don't write actually feelings and emotion in the image when we are writing visually or we are doing visual writing, because emotion जो है उसको हम image के through portray करते हैं. किसी ने हाथ मिलाया, ये एक image है. किसी ने बाय बोला, ये एक image है. इस image से हम ये समझ सकते हैं, हम एक्शन से ही समझते हैं. जब कोई पेन मासूमियत से देता है, जब पेन गुस्से में देता है, आप एक्शन से उसके इमोशन को समझा जा सकता है. तो विजुअल जो है अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आपको उसमें इमोशन भरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती. आपको इमोशन का हिंट देना होता है. पर अगर आप परफेक्ट विजुअल लिखेंगे तो आप शायद इमोशन भी दे सकेंगे कि किस रफ्तार से कोई बाइक वाला जा रहा है. अगर आप उस इमेज को सही रफ्तार से लिख देंगे या सही रफ्तार से आप शूट कर लेंगे तो समझ में आ सकता है कि ये शायद गुस्से में जा रहा है या फिर ये जो है ये धीरे धीरे जा रहा है, तो क्या ये बहुत खुश है. आपको खुशी के लिए आपको बहुत चीज मतलब बहुत फीलिंग भरने की जरूरत नहीं होगी. आपको अच्छा और क्लीन इमेज सामने रखना होगा. अब I have shared something, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा. Yes, I will check it. So we are moving. सिकोमोर लीफ. सिकोमोर एक पेड़ होता है, मैंने जानबूझ के इसे रखा है ताकि आप लोगों को बहुत सारे लोगों को इमेजिन करने में जो है हो सकता है इमेजिन ना कर सके. दैट्स व्हाई.
If I say a people tree, you all are going to imagine your people. But sycamore is difficult. But well, a lot of people know sycamore also. But sycamore leaf falls softly and rests on its own shadow. कि sycamore का पत्ता गिरता है और अपनी ही परछाई, मतलब sycamore का पत्ता अपनी ही परछाई में गिरता है. ये एक बहुत ही मामूली सा विजुअल है जो आप रोज देखते हैं, पर कि पत्ता अपनी ही परछाई में गिरता है, किसी और की परछाई, किसी और पत्ते की परछाई में नहीं गिरता, पर ये किसी ने नोटिस किया. It's a poem by Abbas Kiarostami, and it's a very famous small poem कि एक पत्ता गिरता है अपनी ही परछाई में. अगर मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो a sycamore leaf falls softly and rests on its own shadow. अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए बहुत ही जल्दी से कि आप लोगों को ये जो सिकमोर लीफ इमेजिन हुआ होगा, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को सिकमोर लीफ जो है उसका क्या एंगल आपको दिखाई दिया? क्या आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं? Sir, can you please elaborate what do you mean by the angle? The angle means, okay, give me a second. आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, तो दिस इज द काइंड ऑफ एंगल. क्या आप लोगों ने ये इमेजिन किया? क्या इस तरह से इमेजिन किया? अगर नहीं तो क्या इमेजिन किया? आपने पेड़ को कहां से देखा? एंगल मीन्स आपने पेड़ को कहां से देखा? Somebody said bottom of the leaf, a ground level. Somebody said a ground level. So और किसी ने कहां से देखा? Parallel track with leaf falling from the tree right in front of my eyes. So right in front of your eyes. So everybody is seeing in their angles. From the ground looking up. So it's a ground looking up means it's a low angle. Where your eyes are, जहां पर भी आपकी आंखें हैं वो वहां आपका एंगल हो गया. आई लेवल मतलब मेरी आंखों के लेवल पे. लुकिंग डाउन, सो इट्स अ टॉप एंगल. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द एंगल्स, बट आई वांट टू सी व्हाट यू आर सीइंग और वेयर यू आर सीइंग द सिकमोर लीफ. कई लोगों ने इसको बहुत ही डिफरेंट बट सेम इमेजिन किया होगा, क्योंकि पत्ता गिर रहा है अपनी ही परछाई में. ऑफ कोर्स जो है अपनी परछाई में आप ऊपर से देख सकते हो, पर बेहतर होगा कि आप उसे नीचे से देखें. बहुत सारे लोगों ने उसे नीचे से इमेजिन किया होगा कि वो लो एंगल पर है और सड़क पर रखा हुआ है कैमरा. सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि वो एक्शन क्या है. तो अगर आप शेडो की बात कर रहे हैं तो शेडो जमीन पे बनती है. आप टॉप व्यू पे देख के शेडो को कैसे इमेजिन करेंगे? इफ आई एम सेइंग सिकमोर लीफ रेस्ट ऑन इट्स ऑन शेडो, तो वी आर गोइंग टू लुक अ शेडो. अब परछाई हम देख रहे हैं, हम ऊपर से कैसे देखेंगे? हमको नीचे देखना पड़ेगा ताकि हम उसकी परछाई देख सकें. लुकिंग अप एंड सी लीफ फॉल फ्रॉम द ट्री. ओके, अब मैं आप लोगों को एक और इमेज दिखा देता हूं. ये एक देख लीजिए, ये एक इमेज है. तो मे बी इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल और लॉट ऑफ पीपल आर बिल्कुल इस तरह की इमेज देख रहे होंगे. कई लोगों ने इस तरह की इमेज देखी होगी जो हमने इसके पहले देखी है, इस तरह की इमेज देखी होगी. पर हो सकता है किसी और ने किसी और एंगल से, मतलब कहीं और खड़े होके सिकमोर लीफ के या लीफ के मतलब पत्ते को गिरते हुए इमेजिन किया होगा. ठीक है, आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं कहीं गलत हो रहा हूं. अब हम थोड़ा सा और जानते समझते हैं और इसके बारे में कि कैसे हम किसी विजुअल को लिखते हैं. बस मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूंगा और फिर हम धीरे से आगे बढ़ेंगे और हम इस एक्सरसाइज को अभी के अभी करेंगे. मैं आप लोगों को बताऊंगा पर कि आप लोगों को उससे किस तरह करना है, और हम 2, 3, 4 एक्सरसाइज को देखेंगे कि वो कैसी हो रही है. बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक और एग्जाम्पल. द फुल मून रिफ्लेक्टेड इन वाटर. द फुल मून reflected in water, the water contained in the bowl. कटोरे में जो है चंद्रमा है, जो चांद है वो पानी में दिख रहा है, पर
पानी कहाँ है? एक कटोरे में. And the thirsty man deep in sleep. So there are 3 images. A full moon reflected in water. पानी, एकदम पानी दिख रहा है हमें. अभी हमें बॉल नहीं दिखा, पानी दिख रहा है हमें. हम थोड़ा सा उसको थोड़ा वाइड करते तो दिखता है कि अरे पानी तो एक कटोरे में है. The content in the bowl. The full moon reflected in water. The water content in a bowl. वो कटोरे में पानी दिख रहा है. But and और थोड़ा हम पीछे जाते थे, तीसरी इमेज, the thirsty man deep in sleep. Maybe वो thirsty हो या ना हो, पर हमको एक इंसान तो दिख गया कि वो deep in sleep. And how do we portray the thirsty man? It's up to you. कि हम उस thirsty man को किस तरह दिखाए, उसकी thirstiness को किस तरह दिखाए. कोई इंसान प्यासा है, उसको हम कैसे दिखाए? It's up to you. But he is in deep sleep. आप लोगों को 3 images क्या दिखाई दी? A full moon, the full moon reflected in water. क्या आप लोगों को दिखाई दिया? The water containing bowl, the thirsty man deep in sleep. क्या आपको इस images में कहीं भी कोई confusion नजर आ रहा है? क्या हम आप लोगों को अच्छे से इन तीनों images को दिखाई दे रही है आप लोगों को? ये 3 different images है, पर ये एक image में भी हो सकता है. सर, सड़क किनारे मुंबई का जो फुटपाथ है, वहां पर एक बेघर इंसान, जो बाकड़े जिन्हें कहते हैं, लकड़ी की पेटियों जैसी दुकानें होती है जिनके सामान बंद करके भाग जाते हैं लोग रात को, उसके पास में सो रहा है. एक कटोरा रखा हुआ है, उस प्याले में पानी है और चांद की रोशनी उसमें झलक रही है और वो वैसा ही सड़क पे सो रहा है. तो वी कैन रिलेट इट विद दैट. जी, सर ऐसा भी हो सकता है कि also जी बोलिए, प्लीज जल्दी से बोलिए. सॉरी सर, मैंने इंटरप्ट किया. ओके प्लीज जल्दी बोलिए. कोई सर मैं ये बोल रही थी कि ऐसा भी दिखा सकते हैं कि एक भिखारी है और प्यासा सूख गया और उसके कटोरे में वो चांद का रिफ्लेक्शन आ रहा है. बिल्कुल दिखा सकते हैं, पर आप लोगों को करीब एक इमेज दिखाई दी, पर फिर भी आप लोगों ने इमेजिन तो कोई अपना ही फुटपाथ, अपना ही कोई किसी बेगर को आपने देखा होगा तो आपको वो इमेजिन हुआ होगा, पर आपको अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% एक इमेज दिखाई दी होगी कि हाँ एक थर्स्टी आदमी के बारे में बात की जा रही है और बोल के बारे में या कटोरे के बारे में बात की जा रही है और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो पानी में पड़ रहा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना. तो आपको एक परफेक्टली इमेज दिखाई दे रही है. इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि इमेज कंफ्यूज नहीं कर रही है, जबकि बहुत ही सारी चीजों को नहीं बताया गया है, पर इमेज में एक इतनी कम चीजें रखी गई है ताकि आपको अपनी इमेजिनेशन में भी दिक्कत ना हो. और एक इंसान, एक बोल, एक चांद और उसकी थर्स्टीनेस. अब एक्सरसाइज का जो वक्त है वो आ गया है, पर मैं आप लोगों को उसके पहले एक बात बता दूं, और वो बहुत जरूरी है कि आप लोगों को ये कैसे समझ में आएगा कि इसे हमें क्या ढूंढना है, हमें कैसे ढूंढना है. तो आपको किस चीज के लिए स्पेसिफिक रहना है? कलर के लिए रह सकते हैं अगर बहुत जरूरी है. कलर से एक इमेज बनती है, कलर से उस चीज का हम उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं. आपकी आंखों में सबसे पहले कलर पड़ता है, उसके अलावा शेप, वो कलर किस शेप में है, वो वस्तु किस शेप में है. सो द कलर शेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको लिखने के लिए. बोल मैंने कह दिया या मैंने कटोरा कह दिया, सो आई एम शेपिंग दैट थिंग. You can't just imagine any kind of different bowl, but there are a lot of different bowl also. But bowl का मतलब ये है कि वो शायद गोल सा होगा, वो सर्कुलर होगा. And the last thing is action. The old man in deep in sleep. What is the action? The action is the moon is reflecting on the water. This is the action. So very specific about color, shape, and action. Remember these 3 things: color, shape, and action. And now you have to write an image. You have to write an specific image in a one line. Don't take 2 lines. Take 1 line. Write an image with a shape or a color, but
there should be a specific action. So आपके पास में 5 से 10 मिनट है. मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है जितने जल्दी हो सके मुझे चैट बॉक्स में आप लोग मुझे भेजें और मैं आप लोगों को उसका पढ़ूं और फिर हम लोग इससे आगे जो इमेज आपने शेयर कर रखी इसी के ऊपर लिखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं. आपको अपनी इमेज पे लिखना है. इट्स जस्ट अ गिविंग यू सजेशन सो दैट यू कैन बी think more. So use your image. Okay. Just one single. One single line. Okay. One single line. It can be a boy going on the road with his bicycle. You can specific the bicycle. You can specific the road. You can specific in the evening. You can specific the location. You can specific the color, the black bicycle. You can specific the man. It's a shorter man. It's a small kid. Red cylinder teapot is hot. Really great, really good. गुलाबी पतंग उड़ाता हुआ बच्चा, बहुत अच्छी बात है. अगर छत पर लिख देते हैं आप तो और भी अच्छा होता है, या वो जमीन पे उड़ा रहा है. A kid making drawing of a tree with green leaves. Nice. हरी पत्तियों से लदे बबूल के पेड़ पर बैठा मटमेला बंदर दांत किटकिटाता हुआ बारिश में की बूंदों में भीग रहा है. बहुत सुंदर इमेज सुनील जी ने लिखा है. हरी पत्तियों से लदे बबूल के पेड़ पर बैठा मटमेला बंदर दांत किटकिटाता हुआ बारिश की बूंदों में भीग रहा है. बहुत बहुत बढ़िया. A little girl in pink dress ran through the old park gates. Very very beautiful image and very specific. मेरी रोड वही जिससे मुझे रोज मंजिल मिलती है. प्लीज दिस इज द थिंग. प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज. द थिंग इज वी आर गोइंग टू स्पेसिफिक कौन सी रोड. हमें इमोशन को अवॉइड करना है, हमें फीलिंग्स को अवॉइड करना है. हमें आपकी रोड हमें दिखाना है. हमें इससे आपकी रोड मुकेश जी नहीं दिखाई दे रही है. तो बोनी बेगर क्रॉसिंग द रोड. ठीक है. बगीचे से आम तोड़कर चौकीदार से छुपकर बाहर भागता एक छोटा बच्चा. वेरी नाइस इमेज. अ रेड कलर ट्रायंगुलर वॉल क्लॉक इज क्लिकिंग क्लिक क्लिक टिक टिक. सॉरी. वेरी नाइस. गार्डन की मुंडेर पर रखे सकोरे में नहाती हरे रंग की छोटी चिड़िया. बहुत सुंदर, बहुत ही अलग इमेज. गार्डन की मुंडेर पर रखे कटोरे में शायद नहाती हरे रंग की छोटी चिड़िया. बहुत बहुत प्यारा. बहुत सकोरा मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें हम पानी भर के और अनाज के दाने डाल के रखते हैं. जी ये जी मैं नहीं जानता, माफ कीजिए. एन एल्डरली कपल मेकिंग एडमिट टॉल नीम ट्री इन अर्ली इन द मॉर्निंग. वेरी नाइस. एक बच्चा अच्छे मूड में गुनगुनाता जा रहा है. अच्छे मूड में बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो गुनगुनाता जा रहा है. मे बी इज इन गुड मूड ओनली. सारी चिंताओं से दूर भी बोलने की जरूरत नहीं है. don't use these metaphors adjective. You don't need to actually use metaphors and adjective when you are making an image. एक बच्चा गुनगुनाता जा रहा है, उसके हाथ में कुछ दे दीजिए, उसके एक्शन में कुछ दे दीजिए, उसकी सारी चिंताओं से दूर. हाउ डू यू नो वो सारी चिंताओं से दूर? यस, मे भी हो सकता है कि उसको चिंता हुई होगी पर उसने मूड चेंज करने के लिए. सो यू कांट नो, यू डोंट नो. इसलिए बस गुनगुनाता जा रहा है. ये हमें लगेगा, हमें लगेगा शायद वो चिंताओं से दूर है अपने में. राइट. द साउंड ऑफ कीवर्ड्स आर breaking the silence of sorrow. So the sound of keywords are breaking the silence of sorrow. It's nice. It could be a but silence of sorrow is already a metaphor, and we are avoiding the metaphor because metaphor specific nahi hote. It's a very necessary for poetry. And I have started from poetry, so I know really well that metaphor is very important for poetry but not for visual. So we have to aware with our metaphors, adjectives. बारिश के टिप टिप में भीगती गिलहरी. नाइस. रियली एक इमेज हमें दिखाई दे रहा है. ओस की बूंद को निहारती फूल पे बैठी तितली.
गुड। बेसुध गहरी नींद में सोता हुआ एक बच्चा, परफेक्ट। बारिश की बूंद गुलाब के पत्ते पर, बारिश की बूंदें गुलाब के पत्ते पर गिर रही है। झरने के नीचे पानी पीता पंछी, वेरी नाइस। मे बी यू कांट सी द इमेज, और मे बी यू कैन यू माइट बी थिंकिंग कि ये इमेज में ऐसा क्या है, पर आप इस देखिए कि इमेज में कुछ नहीं है, इमेज में सिर्फ इमेज है। हमारी अक्सर आदत होती है कि हम जो है राइटिंग को हम पोएट्री की तरह से देखते हैं, पर पोएट्री और फिल्म की राइटिंग और विजुअल राइटिंग अलग है। यस, यू कैन मेल्ट बोथ and make a poetry, but you can't melt, or you can merge both and make a you can't make a screenplay writing with the metaphors, because अगर मैं कहूं कि वो साइलेंस को क्रैक कर रहा है तो स्पॉट बॉय थोड़ी समझेगा उसे, तो कोई और किसी और तरीके से समझेगा। हमें अपने सारे तरीके को एक करना है ताकि कोई हमें गलत ना समझे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। द ब्लू स्काई आउटसाइड माई विंडो filled with a black cloud about to rain. Nice. Now filled with a black cloud, we can stop it here because about to rain, we are already going to know this black cloud means it's about to rain. But can you tell me, are you really specific कि हाँ about to rain? It can't be rain. It can be just कि cloud चले जाएंगे. So we don't know. So the thing is, जो है सिर्फ उसको हमें लिखना है ताकि हम बिल्कुल स्पेसिफिक हो सके। नीला आसमान में उड़ते पंछियों का झुंड, बिल्कुल ठीक है, इससे समझ में आ रहा है। अच्छा, नीले आसमान में पंछियों का झुंड जा रहा है, ओके। सो आप लोगों ने बहुत तेजी से ये किया, ये इसके लिए मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू टू ऑल, एंड आई एम गोइंग टू सी लिटिल मोर। नदी किनारे घने से पेड़ के नीचे बैठी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, ये इमेजिनेशन है। अगर आप कोई इमेज दे सकते तो अच्छा होता, पर इट्स गुड। अगर आप कोई चिड़िया कोई भी देते तो वो आपका इमेज होता और वो थोड़ा रियलिस्टिक होता। बेडरूम में ब्लैक फिलिप्स के हरे ड्रायर से छोटे गीले बालों को सुखाती लड़की, बहुत अच्छा इमेज। A lady sitting on the rooftop of her house sipping tea in terracotta mug. Terracotta mug, I really like. You have specified that it's a terracotta mug. आसमान से छमछम बरसती बारिश, ओके, बट ये एक्शन है, पर इसमें आप कुछ और कुछ इंक्लूड कर सकते थे, जैसे कि वो बारिश में जो है एक सोडा वाटर में गिर रही है, इट कैन बी स्पेसिफिक, और एक प्लास्टिक के एक खिलौने में गिर रही है वो बारिश, तो मुझे एक इमेज क्रिएट हो जाता कि हाँ ये प्लास्टिक का एक खिलौना है जिसमें बारिश गिर रही है और जमा हो रही है, ओके। A boy trying to see the sun during sunset through a fold of his hands. ये मैं समझा नहीं, आप इसे फिर से लिख के भेज सकते हैं। और हम कुछ छोटे घर की बालकनी से ढलते सूरज को देखना, ओके। आप ढलता सूरज लिख सकते हैं, हमको वो उससे दिखाई देगा। उसे देखने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति उसे देख रहा है, बालकनी से कोई व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के बारे में स्पेसिफिक हो सकते हैं और उसे बालकनी से देख रहा है, ये कह सकते हैं, ठीक है। हल्की बारिश में जंगल के कच्चे रास्ते में जाता है बैलगाड़ी, जिस पर एक काला छाता लिए बैठा बुजुर्ग। बहुत अच्छा इमेज है, बहुत बढ़िया इमेज है, बहुत गांव की याद दिलाने वाला इमेज है। और स्लेटी चाय की गरम केतली अपनी चोंच से सफेद धुआं उड़ाती मेरे चश्मे को अपने भाप से धुआं कर रही है, बहुत अच्छा। It's also like a poetry and still a visual image. चिलचिलाती धूप में तपती हुई रेत में कदमों के निशान, बहुत अच्छा। अगर आप बता रहे, अगर आप मुझे इसे मूविंग बना सकते थे कि कोई व्यक्ति जा रहा है, ऑफ कोर्स उसके निशान बनते जाएंगे, पर एक निशान अपने आप में भी एक अच्छी इमेज है। घर की छत पर बैठा केले खाता बंदर, नाइस। लज्जाती आंख से देखता छोटा हाफ पैंट पहना बच्चा, नाइस। Can we say a big room is divided by brown wooden? Yes, we can say a big room divided by a brown wooden something kept near the brown wooden, or something kept near that thing, or somebody is touching that thing, or there is a painting on that. So little more image, give me little more. So
इस इमेज के साथ में गुनगुनाती धूप में नहाकर बैठे छोटे बच्चे, बहुत ही सुंदर इमेज। स्वीट की दुकान में रखे स्वीट को एकदम से देखता है छोटा सा बच्चा। ओके, नाउ वन लास्ट इमेज। बारिश के बाद मकड़ी के जालों में बूंदों का जमना। मकड़ी के जालों में बूंदों का जमना इज रियली रियली नाइस इमेज। लास्ट इमेज नाउ। सड़क से गुजरती गाड़ियों की आवाज से अनजान फटी पीली शर्ट पहने खड़ा 6 साल का रवि दुकान पर रखे पोहों पर नजर जमाए। ओके, so now we are going to move and I am going to tell you another thing. Thank you so much for this much warmth and you all लिखते, पर मैं आप लोगों में देख रहा हूं कि आप लोगों में लिखने की जो है खूबी है, सलाहियत है और लिखने का जो सेंस है वो है। You all are actually started suddenly writing. So what I am going to portray in this lecture that anybody can write or you can write anything. You just don't have to be a great, don't have to have a great story or visual. Just write a simple visual, but be specific, so it will become your own. If I am sharing with you this small flower pot, I had brought it like 10 rupees, but now because it's a broken, and if I am saying this broken small flower pot has a bond, यहाँ पर मैंने इसको बांध दिया क्योंकि ये ब्रोक हो गया था। मैं कहूँ कि अगर मैं धागे से एक छोटे फ्लावर पॉट को बांध दिया जो टूट गया है, ये मेरे लिए स्पेसिफिक हो चुका है, अब किसी और के पास में नहीं है, ना ये इमेज और ये फ्लावर पॉट भी नहीं है। सो मैं आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि सिर्फ जो इमेज दिख रहा है उसको लिख देना है। जो इमेज आप अच्छे से देख सकेंगे उसके शेप में, उसके कलर में, उसके टेक्सचर में, विदाउट मेटाफर, विदाउट एनी गिविंग एनी फीलिंग, एनी इमोशन, you are going to write more visually and more deeply because metaphor makes it very different शक्ल, very different shape, क्योंकि मेटाफर से आप हर किसी को अलग अलग अपना अपना इमेजिन होता है, बट विजुअल से आपका विजुअल आप तक पोर्ट्रे होता है। आई गेस आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा इससे, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब कहानी की तरफ लेके चलता हूँ कि कहानी में किसी कहानी को आप कैसे देख सकते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओ दिस इज स्टोरी, दिस इज स्टोरी मीन्स इट कैन बी एनीथिंग, यू कैन मेक स्टोरी ऑन इट, बट if you are telling your story in a specific time, so you have to structure. आप लोग सभी पढ़ाते हैं और आप लोग लेक्चर रहते होंगे, तो जब आप लेक्चर को डिजाइन करते होंगे तो मे बी आप you can't just go and teach, you have to have a certain kind of structure so that you can end somewhere, right? So we have to have a structure if you are thinking about the पर्टिकुलर टाइम जोन। सो हम लोग छोटी फिल्मों के बारे में बात करेंगे, हम लोग बहुत ही छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे ताकि आप उन छोटी इकाइयों के जरिए आप समझ सके कि हम किसी कहानी को कैसे देखते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं कि हम क्या करें। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी बिल्डिंग। स्टोरी बिल्डिंग के सबसे ज्यादा मूलभूत तत्व क्या है, जो बेसिक एलिमेंट्स, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स एंड हाउ डू आई आइडेंटिफाई दिस इज द स्टोरी और दिस इज स्टोरी can be 10 minutes or 20 minutes, or this can be a story I can write in 10 minutes, or how do I identify there is the story, there are the story. So yes, how does it form? The first thing, एक व्यक्ति हुए थे डेविड मार्मेट ने कहा था कि story happen because somebody wants something and has trouble getting it. स्टोरी हैपन बिकॉज समबडी वांट समथिंग। उन्होंने ऐसी एक बात कही थी कि कहानियां बनती है जब किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कोई चीज चाहिए होती है और उसे उसको चाहने में या उसे प्राप्त करने में, उसे जानने में, उसे मिलने में उसे मुश्किल पैदा होती है। स्टोरी हैपन बिकॉज समबडी वांट्स समथिंग एंड हैज ट्रबल गेटिंग इट। ये डेविड मार्मेट ने कहा था, ये डेविड मार्मेट का कोट है। पर अब इस कोट को
आप एक फॉर्मूले में देखिए, इस कोड को आप ऐसे समझिए कि इसको अगर हम फॉर्मूला समझे और हम इसको समझे कि स्टोरी हैपेंस बिकॉज समबडी वांट्स समथिंग एंड हैज ट्रबल गेटिंग इट, में समबडी क्या है? अगर मैं कहूं कि समबडी को आप समबडी की जगह पर आप कैरेक्टर को रखिए, somebody is a character, somebody is the character. अगर इस कोड को हम फॉर्मूला मान ले, स्टोरी happen because somebody wants something and has trouble getting it, अगर हम इसमें somebody को एक कैरेक्टर मान ले, तो कैरेक्टर अगर इसमें कैरेक्टर को रख देते फिलहाल के लिए कि इट कैन बी अ मूंगफली वाला, इट कैन बी एनीबडी, इट कैन बी अ मजदूर, इट कैन बी एन ओल्ड लेडी इन द हॉस्पिटल, इट कैन बी योर नेबर्स किड, इट कैन बी अ स्मॉल किड, इट कैन बी पतंग उड़ाता हुआ बच्चा। somebody की जगह पर इस कोड को आप फॉर्मूला मानिए और somebody की जगह पर आप एक कैरेक्टर को रख दीजिए। कोई भी हो सकता है जॉन अंकल जो बार बार जो है ठीक 11 बजे अपनी पुरानी स्कूटर को चालू करते हैं, वो हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आपको somebody की जगह पर इस कैरेक्टर के किसी भी कैरेक्टर को रख देना है। बट व्हाट इज वांट्स समथिंग, इस कोट में स्टोरी हैपेंस बिकॉज somebody wants something and has trouble getting it, में want something क्या है? want something क्या होता है, क्या है? अगर हम इसमें हम सोचे इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो what is the film about, फिल्म किस बारे में है? ये want something, फिल्म किस बारे में होने वाली है? ये want something होने वाली, मतलब फिल्म किस तरह का क्वेश्चन उठाने वाली है, किस बारे में हम जानने जा रहे हैं। क्या कोई पहाड़ चढ़ने वाला है? is anybody going to climb the mountain? क्या हम किसी पहाड़ के बारे में फिल्म को जानने वाले हैं? फिल्म किस बारे में बोलने वाली है? क्या ऐसा हो रहा है कि कोई ट्रैवल करने वाला है? जब भी मेट आपने देखी होगी, इज गोइंग टू बी अ ट्रैवल फिल्म। और क्या कोई सिर्फ अपनी जान बचाएगा? किडनैप करके एक फिल्म आई थी, क्या ऐसा कुछ है कि कोई अपनी जान बचाने वाला है? और इज एनीबडी गोइंग टू सेव हिमसेल्फ? हम फिल्म में क्या देखने वाले हैं, उसका सही उसका सोल क्या है? या क्या कोई अपने बिछड़े दोस्त को ढूंढेगा, 3 इडियट टाइप का? क्या कोई कहानी ऐसी है कि 2 दोस्त निकले हैं और अपने एक दोस्त को ढूंढने वाले हैं? क्या हम इस बारे में ऑल दिस थिंग इज वांट समथिंग, जो वांट है, कैरेक्टर क्या चाहता है? और क्या कोई अपने आप को खोजेगा, गाइड? तो आपने समझा, somebody कैरेक्टर वांट समथिंग, किस बारे में फिल्म है। नाउ व्हाट हैपेंड? Nothing happened. Just now we are going to talk Sir, sorry to interrupt. Sir, sorry to interrupt. Yes. Sir, मुझे प्लीज एक बार want something वाला समझा दीजिए। Want something हम फिल्म किस बारे में देखना जा रहे हैं कि कैरेक्टर क्या करने वाला है? क्या कैरेक्टर जो है पहाड़ चढ़ने वाला है? क्या कैरेक्टर जो है वो नदी पार करने वाला है? क्या कैरेक्टर जो है बाइक लेके निकल जाएगा? कैरेक्टर करेगा क्या? क्या कैरेक्टर जो है अपनी माँ से मिलने के लिए गाँव जा रहा है? कैरेक्टर क्या करेगा? But the third thing is very important, and that is problem. And what is problem? Problem has trouble getting it is the problem. Has trouble getting it की जगह पर problem को रख देना है। Problem क्या है? कोई conflict, मुश्किल, कोई challenging situation, कि कोई बंदा जो अपनी माँ से मिलने के लिए ट्रेन पकड़ के जा रहा है पर ट्रेन कैंसिल हो गई। क्या है चैलेंजिंग सिचुएशन? तो वो क्या करेगा? प्रॉब्लम क्या, ऑब्स्टेकल क्या है उसका, उसमें मुश्किल क्या आ रही है? इज हैज ट्रबल गेटिंग इट। जिस कैरेक्टर को एक्चुअली पार करना होगा ताकि गोल अचीव हो सके, ताकि कोई व्यक्ति वो जगह तक पहुंच सके, उस गोल को अचीव कर सके। प्रॉब्लम इज हैज ट्रबल गेटिंग इट। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, the David Mamet's quote, story happened because somebody, means the character, wants something, doing what he is going to do or she is going to do. Somebody, character, doing what, somebody wants something and has trouble getting it, the problem. तो क्या प्रॉब्लम उसके सामने आएगी? हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल के जरिए आप लोग कुछ समझेंगे और उसके बाद उस एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को इसे लिख कर बताना होगा ताकि हम लोग इसे समझ पाएंगे कि आप इसे किस तरह से देख रहे हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। 10-year-old जहांगीर wants to go to Saudi Arab to find his father. जहांगीर जो है वो सऊदी अरब जाना चाहता है, बट प्रॉब्लम, he doesn't have a passport.
कैरेक्टर कौन है हमारे यहाँ पे? आप बता सकते हैं मुझे कि कैरेक्टर कौन है आपका? यहाँ पे हमारा कैरेक्टर कौन है? जहांगीर है। जहांगीर है और कहाँ जाना चाहता है? सऊदी अरब। ये उसका गोल है, उसको सऊदी अरब पहुंचना है। बट द थिंग इज पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट प्रॉब्लम है उसकी। ओके, नाउ another example, we are going to see another example. And after the retirement, Nalini wants to ride and run an auto for her survival. उसको नलिनी को रिटायरमेंट के बाद ऑटो चलाना है, ये उसका मन है। बट द प्रॉब्लम इज फैमिली डजंट एक्सेप्ट। आप लोग समझ रहे हैं कि ये कितना साधारण सा है कि एक व्यक्ति किसको उसको कुछ चाहिए और उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। एक व्यक्ति को आप रखिए, उससे आप कैरेक्टर कहिए, है ना, और उसकी बताइए कि उसको ये चाहिए, उसे कैसे भी इस चीज को चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है रखिए। एंड लास्ट वन, नए घर में शिफ्ट हुई नूतन गमले में एक पौधा लगाना चाहती है। न्यूली शिफ्टेड नूतन wants to keep a plant. The thing is, बस मिट्टी होता है बड़े शहरों में, महानगरों में 3 से तीसरे चौथे फ्लैट पे आप रखते हो, दूर दूर तक मिट्टी नहीं होती, गमला लगाना मुश्किल होता है, उसे गमला लगाना है। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है कि उसे गमला लगाना है। ये कोई 5 मिनट की कहानी हो सकती है, अगर फिल्म के मुताबिक हम देखें तो 2 मिनट की हो सकती है। गमला ये इसलिए मैं आप लोगों को 2 मिनट 5 मिनट के बारे में बता रहा हूँ, या आप लोगों को सऊदी अरब वाली जो स्टोरी है ये बड़ी भी हो सकती है, पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि छोटी या बड़ी स्टोरी इसको ना देखते हुए इतना देखे कि ये कैरेक्टर है, वो क्या करना चाहता है और उसकी प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है 5 से 10 लोग सिर्फ, बहुत ज्यादा नहीं, और सिर्फ आप लोग एक लाइन जैसे हमने लिखी है यहाँ पे, आप कोई अपनी फेवरेट फिल्म की इस लाइन को लिखे, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इस लाइन को क्यों लिखा जाता है। ये इसे कहते हैं लॉग लाइन, जिसको आप एक लाइन में किसी को भी दे देंगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा हम लोग ये फिल्म देखने जा रहे हैं। ये इंडस्ट्री का एक तरह से स्टैंडर्ड है, और अगर आप लोग इसको लिख लेते तो आप इंडस्ट्री के बेसिक स्टैंडर्ड को तो समझ चुके हों। तो आप लोग जल्दी से, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको लिखें ताकि हम लोगों को समझ में आए कि आप लोगों ने क्या समझा। गांव की बेटी अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती, क्या करना चाहती है स्पेसिफिक? बारिश में किसान अपने 2 बूढ़े बैलों की खेत की जुताई कर रहा है, ये इमेज है। क्या वो जुताई करना चाहता है और उसके पास बैल नहीं है? आप ये देखिए कि ओके, Jay wants to meet his ailing mother suffering from cancer, but he is in the prison. बिल्कुल अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात, बहुत ही सामने साफ तौर पे आपने कही। इसमें प्रॉब्लम भी है, कैरेक्टर भी है, और इसमें गोल भी है। 2 बच्चे खेत में कंचे खेल रहे हैं, ये इमेज हो सकता है जयंती जी, ये एक इमेज है। He wants to start a company but do not have funds. Who wants to start? A चाय वाला wants to start. Rahul wants to start. माफ कीजिए, तो स्क्रीन पर कुछ Mike wants to revenge of his father's assassination. अब but what is the problem? Please, Shaili ma'am, please. Sir, that is to take revenge of his father's assassination. वो Godfather का वो जो सीन है वो वाला आपने कहा ना, कोई फिल्म का बोलिए तो। हाँ, बस बोल रहा हूँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी कहानी जो है आप इस तरह से देखते कि अच्छा, और ये तो सीन है, इसमें पर प्रॉब्लम भी है कि वो बदला लेना चाहता है, ये उसकी वांट है। हाँ, रह गया एक्चुअली। नहीं, बदला तो लेना चाहता है, ये समझ में आ गया, पर बदले लेने में प्रॉब्लम क्या है वो समझना है, वो ही उसका कॉन्फ्लिक्ट है। अगर वो नहीं होगा तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। उसकी वांट हमको समझ में आ गई कि वो अपने पिता का बदला लेना चाहता है, पर हमको समझ में नहीं आया कि उसमें प्रॉब्लम। But he can't. If I'll add, but he can't. अगर ऐसा he can't, but why he can't? Why he can't? Okay. The problem. Like he's a civilian or something like that. So जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी मुश्किल है,
उसको आप रखिए कि वो एक सिविलाइज इंसान है इसलिए वो नहीं कर सकता। इसमें आपको एक हमें हमेशा फिजिकल कोई ऑब्स्टेकल दिखाई देता है जब हम फिल्म में देखते हैं कि हाँ उसके अंदर का कुछ है कि वो जा नहीं सकता, या वो चाकू नहीं मार सकता, या वो गोली नहीं चला सकता, तो फिर वो गोली चलाना सीखता है। गांव की बेटी पढ़ना चाहती है पर समाज की सोच आगे आ रही है, तो ये एक समाज इसमें प्रॉब्लम है। वो पढ़ना चाहती है, उसकी वांट है, सोच समाज की सोच आगे आ रही है उस समाज की सोच को आप कोई इंसान में तब्दील कीजिए, उस समाज की सोच को आप जो है किसी चीज में तब्दील कीजिए कि किस समाज की सोच को आप किसके जरिए दिखाना चाहते हैं। क्या पिता के जरिए दिखाना चाहते हैं कि क्या पिता की सोच है? क्या आप दिखाना चाहते हैं कि सामाजिक स्तर पर कि वो जो है उसको उसी के समाज के लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या कोई दूसरे समाज के लोग आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, या बेटी को जो है क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई रोक रहा है? कौन उस समाज की सोच को दिखाने के लिए किसी फिजिकल एलिमेंट को रखना होगा। सुरेश wants to become university topper and then will marry, but his girlfriend doesn't agree with the plan. Okay, so बिल्कुल एक छोटी सी बात हो सकती है कि एक सुरेश है जो यूनिवर्सिटी टॉपर करना चाहता है, उसके बाद ही वो शादी करना चाहता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड है वो उससे एग्री नहीं हो रही, ये उसकी प्रॉब्लम है। He wants to go abroad but don't have enough money. Who wants to go? If I am saying a banana seller wants to go abroad, so I am specifying with the character. पर अगर मैं बोलूं he wants to go, नरेंद्र wants to go, but नरेंद्र को मैंने कहा कोई दे दिया कि एक म्यूजिशियन wants to go abroad, तो मुझे एक स्पेसिफिक प्लीज माइक ऑन है, प्लीज उसे ऑफ कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। रवि अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है पर उसकी फैमिली इंटरकास्ट शादी के पक्ष में नहीं है। बहुत अच्छी बात है, फैमिली इज द ऑब्स्टेकल। अ मैन फॉल्स इन लव विद अ डाइंग गर्ल, नाइस। और अ मैन फॉल्स इन लव विद अ गर्ल हु इज डाइंग, बट इसमें प्रॉब्लम भी साथ में सामने नजर आ रही है कि एक व्यक्ति जो है एक लड़की के प्यार में पड़ गया है जो मरने वाली है, तो उसके मरने का दिन करीब आ रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। बट और सिंपल सी बात है, उसमें वांट है कि ही वांट्स समथिंग, ही वांट्स दैट गर्ल, और वो मरने वाली है। कैंसर से आने वाले मौत को बुलाकर बची हुई जिंदगी में खुशियां और प्यार बनाने वाला आनंद, ये मेरी कहानी है। जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बोला उसके मुताबिक नहीं है। हर्षिल जी, सफाई कर्मचारी का लड़का अधिकारी बनना चाहता है, ये बात हमको समझ में आ रही है कि सफाई कर्मचारी का लड़का अधिकारी बनना चाहता है और उसके पास जरूर पैसे नहीं होंगे और उसको जो है सामाजिक तौर पर उससे बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, ये हमें समझ में आ रहा है। पर आपको वो लिख देना चाहिए वो मुश्किल, सबसे इनिशियल मुश्किल क्या है आ रही है उसको, सबसे बड़ी मुश्किल क्या आ रही है उसको, वो आपको लिखना चाहिए। मुकेश जी, Laila wants to buy an ice cream but she does not have the pocket money for it. बहुत बहुत सुंदर। Laila wants to buy an ice cream but does not have the pocket money of it for it. तो पैसे नहीं है और वो आइसक्रीम खरीदना चाहती है, एकदम सिंपल है। कलेक्टर बनने का सपना अपनी आंखों में लिए छुटकी शहर से आ गई है पर कॉलेज फीस देने के पैसे नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। Saurav wants to eat pizza and go to Pizza Hut, but due to lockdown, Pizza Hut is closed. Now, Saurav wants to, Saurav will do something to have pizza. A graduate girl student film studies पढ़ना चाहती है पर उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर। मेरा भाई आर्मी में जाना चाहता है पर घर के लोग तैयार नहीं है। कौन आर्मी में जाना चाहता है उसको लिखिए। आप मेरा भाई कहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर कोई एक लड़का है जो आर्मी में जाना चाहता है पर उसके फैमिली से रोक रहे हैं। ओके, नाउ द थिंग कि हम लोग अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज करेंगे। हम लोग के पास वक्त कम है, माफ कीजिए, मैं अब और लोगों के नहीं ले सकता क्योंकि हमें और आगे भी पढ़ना है और आगे भी हमें जानना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमें आज समझनी और देखनी है। सर, कैन आई जस्ट से वन थिंग, जो मैंने आप से वो कैंसर से आने वाली मौत को भुलाकर बची हुई जिंदगी में खुशियां और प्यार बांटने वाला आनंद, अपने दोस्त के अकेले रह जाने से चिंतित, ये पूरा करना था बट वो एंटर करते समय लास्ट लाइन। ओके, तो आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्योंकि इतना लंबा जो है, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। कोई एक चीज बोल दीजिए कि ऐसा है आनंद और वो ऐसा करना चाहता है जी सर, ताकि
ताकि वो जो है वो कम शब्दों में वो बेहतर ढंग से समझ में आए। ये करना हमें ज्यादा जरूरी है, और इसे ही आप इसे जैसे जैसे आप करते जाएंगे, बिल्कुल ये प्रैक्टिस की बात है, और ये प्रैक्टिस आपको जो है वो और भी स्पेसिफिक और उसकी तरफ बढ़ते हुए लेकर जाएंगे। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, और माफ कीजिए मैं कुछ लोगों की राइटिंग नहीं ले पाया, क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ना है, हमारे पास अभी काफी कुछ है जिसको आपको मुझे बताना है और जिसको आपको समझाना है। मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी फिल्म दिखाने जा रहा हूँ, और आप उसको देखें और आप उसको समझें, और फिर हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा समझने की, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें। तो आप प्लीज रेडी हो जाइए आप लोग, और उसको समझने की कोशिश करें। ओके, ओके, सो ऑफकोर्स आप लोगों को ये फिल्म दिखाई दी होगी, और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा शायद। हो सकता है कि ओके, सो जो है आप लोगों को इसमें कैरेक्टर दिखाई दिया होगा, और इसका कैरेक्टर का गोल दिखाई दिया होगा, और कैरेक्टर की प्रॉब्लम दिखाई दी होगी। तो हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे, ताकि आपको कहानी का एक छोटे तरीके से उसका प्रारूप, उसका ढंग, उसका रंग उसको समझ में आए, कि वो कहानी जो है वो किसी एक स्ट्रक्चर में किस तरह से बंधी होती है। जैसा कि हमने पहले जैसे कि हमने पहले देखा कि एक जो कैरेक्टर है वो क्या चाहता है, what he wants and what is the problem। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं बहुत ही जल्दी से कि इस कहानी की क्या वांट थी, कैरेक्टर कैसा था, कैरेक्टर क्या था। क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि कैरेक्टर क्या था? कैरेक्टर एक स्कूल बॉय था, राइट? एक स्कूल बॉय था कैरेक्टर, और उसका गोल क्या था? उसका घर वो पहुंचना, घर जाना चाहता था, गली पार करना चाहता था। बिल्कुल, वो घर जाना चाहता था, गली पार करना चाहता था वो। और उसकी प्रॉब्लम क्या थी? डॉग था, उसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम थी वो डॉग था, कि वो डॉग जो है, और क्योंकि हमने स्कूल का बच्चा बनाया, लिटिल बॉय वांट्स टू गो होम बट देयर वाज अ डॉग इन द वे। सिंपल सी बात है, वो गली पार करना चाहता था, पर वहां पर जो है एक कुत्ता था, और वो उसके प्रॉब्लम है उसकी वो। तो अगर हम क्योंकि एक बच्चा जो है वो कुत्ते से डर सकता है, और वो स्कूल से आ रहा है, वो थक गया है, तो एक कैरेक्टर को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब आपने देखा कि वो कैरेक्टर जो है वो किस तरह से गली को पार करता है, और उसमें फिर वो प्रॉब्लम कैसे है। तो हम इसको थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हम जो है उसे समझते हैं कि उसमें क्या हुआ और कैसा उसका स्ट्रक्चर था। तो जैसा कि लॉग लाइन है उसकी, पर हम उसको समझते हैं एक्ट के जरिए। पर एक्ट जो है, आप इससे एक्ट से हमको डरना नहीं चाहिए कि एक्ट क्या आ जाता है, लिटरेचर की बात हो जाती है, सेटअप है, कन्फ्रंटेशन, इन सब चीजों से नहीं हमें डरना चाहिए। अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या इसमें सेटअप है, क्या इसमें कन्फ्रंटेशन है, और क्या इसमें रिजोल्यूशन है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्ट 1 में क्या हो रहा है। एक्ट 1 में क्या होता है? आपने देखा कि कैरेक्टर जो है वो एक डिब्बे को पैर मारता हुआ आ रहा है, तो आपने कैरेक्टर को समझा कि कैरेक्टर क्या है। एक छोटा बच्चा स्कूल से थका आ रहा है, जो है वो आ रहा है अपनी मस्ती में। हम एक्ट 1 में सेटअप करते हैं, हम एक्ट 1 में ये सेटअप करते हैं कि क्या है कैरेक्टर, क्या है वो, क्या है उसका प्लेस, क्या है लोकेशन, क्या है सिचुएशन, हम उसको सेटअप करते हैं। पर आपने एक चीज देख रहे होंगे, इंसाइटिंग इंसिडेंट। इंसाइटिंग इंसिडेंट वो चीज है जहां पर वो कुत्ता आ जाता है सामने, लड़का आ रहा है गली में, और कुत्ता आ गया। ये इंसाइटिंग इंसिडेंट है जो उसको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहां पर उसको समझना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं। अब जो है प्लॉट पॉइंट 1 शुरू होता है कि अब वो क्या करेगा। पर जी देखिए, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 जो है ये अक्सर फीचर फिल्म के लिए कहा जाता है, और जो छोटी फिल्में होती है उसमें थोड़ी सी चीजों को कम करना होता है।
उसमें जरूरी नहीं है ये जो मिड पॉइंट आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये हो, जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए मैंने इस फोटोग्राफ को रखा है ताकि आपको मिड पॉइंट आपके दिमाग में रहे। पर फीचर फिल्म में हमेशा एक मिड पॉइंट होगा, ये उसका नियम है। पर तो सेटअप में हम देखते हैं एक कैरेक्टर को, उसकी जगह को, उसकी चीज को, पर इनसाइडिंग सिचुएशन, इनसाइडिंग इंसिडेंट वो सिचुएशन है जिसमें कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर को मिल गई है। प्लॉट पॉइंट 1 उस सिचुएशन, वहां से सिचुएशन शुरू होती है कि वो जब सोचना शुरू करता है। अब एक्ट 2 में उसको वो कन्फ्रंट करता है कि अब वो करे क्या, वो ऐसा क्या करे कि जिससे वो जो है वो गली पार कर ले। एक्ट 2 में वो अपने आप को सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है कि क्या होगा, मैं गली पार कर लूंगा, काट तो नहीं लेगा, अच्छा इतने में कोई व्यक्ति चला गया, अच्छा ये गली पार कर लिया, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या और कोई दूसरा चीज हो सकती है, चलो वेट करते। वो कन्फ्रंट कर रहा है। ये सारे स्टोरीज के लिए ये लागू होता है कि ही इज कन्फ्रंटिंग हिमसेल्फ एंड द सिचुएशन कि व्हाट इज द वे टू जस्ट कि गली पार करने के लिए कौन सा तरीका हो सकता है, कौन सा रास्ता हो सकता है। अब एक चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं वो पॉइंट जहां पर आपने देखा कि एक व्यक्ति जो है उसको मिल जाता है, उसके पीछे 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 चला जाता है, पर वो एक जगह तक ही पहुंच पाता है और वो गली में मुड़ जाता है। अब उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां से वो वापस नहीं लौट सकता। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, प्लॉट पॉइंट 2, जहां पर उस बंदे को, उस बच्चे को अब वो वापस नहीं लौट सकता है, ये वो जगह है। अब उसको आगे बढ़ना पड़ेगा और वो जैसे आगे बढ़ता है, कुत्ता उस पर भौंकता है और वो उतने में ब्रेड दे देता है। वो जैसे भौंकता है या वो जैसे उसके ऊपर लपकता है उसे काटने के लिए, ये उसका क्लाइमैक्स है कि जब वो कुत्ते के करीब जा रहा है और कुत्ता उसको लपकने वाला है और उसको एक ब्रेड का टुकड़ा दे देता है। और जब ब्रेड का टुकड़ा दे देता है तो चीजें रिजॉल्व होती है, वो चीज रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ती है। एक और फोटोग्राफ है, उसके जरिए अब आप इसको समझिए पर कि एक्ट 1 20% का होता है मोस्टली। आप किसी भी तरीके की फिल्म में देखेंगे तो मोस्टली वो 20% का होता है। अभी हम एक और, इसके बाद एक और फोटोग्राफ देखेंगे, उसमें भी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। पर एक्ट 2 जो है, एक्ट 3 जो होता है, जो उसका वो पॉइंट है जहां पर क्लाइमेक्स और उसका रिजोल्यूशन आता है, वो भी 20% का होता है। पर आपको क्या लगता है कि एक्ट 2 जो है वो कितने परसेंट का होता होगा, कितना परसेंट ऑफ हिस्सा जो है वो एक्ट 2 हो सकता है? मेजर परसेंटेज जो होता है किसी भी फिल्म का, वो उसका मध्य, उसका मिडिल होता है, जो ऑलमोस्ट 50 to 60% होता है। इट कैन बी 20, नॉट 20, 25 हो सकता है, पर जो उसका मध्य हिस्सा है वो उसका 50 to 60% होता है। ये अनिवार्य है। तो क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको इससे कि फिल्म उसका मिडिल होता है, उसका बिगिनिंग तो उसका सेटअप है, उसका एंड तो उसका रिजोल्यूशन है, उसको रिजोल्यूशन दे देना है, एक सॉल्यूशन दे देना है। पर फिल्म होती है उसका मध्य भाग, उसका बीच का हिस्सा 60% जो सबसे ज्यादा होता है वो फिल्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूँ कि देखिए एरो 1 इंट्रोडक्शन जो है, उसके बाद में इनसाइडिंग इंसिडेंट आ जाता है। इंट्रोडक्शन से इनसाइडिंग इंसिडेंट तक हम सेटअप करते हैं, हम बताते हैं कैरेक्टर क्या है, कैसा है, क्या है वो, क्या वो स्कूल बॉय है, वो घर से लौट रहा है, हम उसको सेटअप करते हैं, सिचुएशन को सेटअप करते हैं। बट इनसाइडिंग इंसिडेंट के बाद में वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहां पर उसको पार करना है। राइजिंग एक्शन वो होता है जहां पर उसको वो डिसाइड करना होता है, और वो मतलब इनसाइडिंग इंसिडेंट के बाद में हर चीज ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, मतलब टेंशन बढ़ता चला जाता है। इस फिल्म में भी आपने देखा होगा कि टेंशन बढ़ रहा है, वो सोच रहा है कि क्या करें, और क्लाइमेक्स वो पॉइंट होता है जहां अटमोस्ट टेंशन जो है वो बिल्ड हो चुका होता है, वो टेंशन का पीक पॉइंट होता है, और क्लाइमेक्स पे आके हम चीजों को रिजॉल्व करते हैं, उसको हम एक सॉल्यूशन देते हैं, उसको हम एक खत्म करते हैं। वहां पर क्लाइमेक्स वो जगह है जहां पर उसका वो चोटी का, शिखर का जो है टेंशन होता है। और उससे पहले आपने देखा कि राइजिंग एक्शन कहते हैं कि एक्शन जो है बढ़ते जा रहा है, उसका जो आपने देखा कि एक व्यक्ति निकल गया गधों के साथ में, एक व्यक्ति साइकिल से निकल गया, ये वो चीजें जहां वो उसको बार बार पुश कर रही है कि भाई तुझे भी निकलना है, तुझे भी जाना है। और उसको जब उसको साथ मिलता है, वो जो बूढ़े का साथ मिलता है, वो मे बी सब प्लॉट हो सकता है। सब प्लॉट मैं आपको चलते चलते बता देना चाहता हूँ कि सब प्लॉट वो चीज होती है जो किसी भी कहानी को, किसी भी नैरेटिव को थोड़ा पुश करती है। वो जो बूढ़ा है वो इस कहानी का सब प्लॉट हो सकता है, जो कहानी को थोड़ा सा आगे लेके जाता है, जो कैरेक्टर के, जो मेन कैरेक्टर के गोल को थोड़ा सा हेल्प करता है आगे बढ़ाने में। आप भूलिएगा मत कि सब प्लॉट क्या चीज होती है। हम राइजिंग इंसिडेंट और क्लाइमेक्स के बीच में
हम जो देखते हैं वही फिल्म है। जो इंट्रोडक्शन है वो सेटअप है, जो रिजोल्यूशन है वो मतलब जो उसका क्लाइमेक्स है वो रिजोल्यूशन है, वो एक छोटे छोटे पार्ट होते हैं, पर जो बीच का जो हिस्सा है जो हम देख रहे हैं वही पार्ट जो है सबसे ज्यादा जिसे हम फिल्म कह सकते हैं, जिसमें हमें उसका टेंशन बढ़ाना है और उसको एक पीक तक लेकर जाना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम कहानी को किस तरह से अक्सर हम देखते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने लिए एक जो है एक इंसिडेंट लिखें, और वो इंसिडेंट जो है आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी अपनी जिंदगी का कोई भी इंसिडेंट आप लिख सकते हैं। और वो इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है कि एक कूलर हो सकता है कि आपको कूलर सुधारते हुए उसका जो है टूल्स नहीं मिल रहे, जो आपको कूलर सुधारना है वो टूल्स नहीं मिल रहे। आप कोई अपनी जिंदगी का कोई इंसिडेंट लिख सकते हैं जो आपको जो आपकी जिंदगी में 1-2 दिन पहले हुआ हो, कोई ऐसा कोई छोटा सा इवेंट, कोई छोटा सा इंसिडेंट लिख सकते हैं कि आप मार्केट जा रहे थे और फिर पर्स भूल गए, फिर वहां पर किसी ने आपको हेल्प कर दी और फिर पैसे मिल गए। कोई छोटा इंसिडेंट, बहुत छोटे इंसिडेंट को आप अगर पकड़ना और ध्यान देना सीख जाएंगे तो आप किसी बड़े जो फॉर्मेट की फिल्म है या बड़े फॉर्मेट की कहानी है उसको भी आप समझने में आपको बहुत बहुत आसानी है। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता था, और यहाँ पर जो है मेरा लेक्चर जो है वो खत्म होता है, और मैं ये चाहूंगा कि आप जो है अब मुझे आपके कुछ क्वेश्चन जो है मैं ले सकता हूँ, और कोई भी जो है वो क्वेश्चन जो है जल्दी से पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है, आई एम डॉक्टर उज्जवल। ये आपने जो भी बताया 3 एक्ट स्टोरी स्ट्रक्चर, जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का एक्सटेंशन लीजिए कि जब पहली फिल्म बनी थी भारत में राजा हरिश्चंद्र जी, तब तो 3 एक्ट स्टोरी स्ट्रक्चर था नहीं, उसके बाद फिल्म बना ली गई, कई सारी फिल्में बनी, उसके बाद शायद किसी ने जो है 3 एक्ट स्टोरी स्ट्रक्चर का जो है एक फॉर्मेट डिजाइन कर दिया कि एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, 20%, 40%, 20%, 100%। ठीक है, तो क्या 3 एक्ट स्टोरी स्ट्रक्चर की जरूरत ही हमें क्यों है? और अगर थी तो तब क्यों नहीं हुई जब पहली फिल्म बनी? तो क्या ऐसा नहीं है रहा कि मास कम्युनिकेशन में हम कुछ चीजों को बाय फोर्स डाल रहे हैं? जैसे 3 एक्ट स्टोरी स्ट्रक्चर की आपने बात की, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो मास कम्युनिकेशन के नहीं भी है, फिल्म बनाते हैं, और वो 3 एक्ट स्टोरी स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है वो उन्होंने पढ़ा भी नहीं है। जी, मैं जवाब देता हूँ। लेकिन फिर भी फिल्में बन रही है, तो ये जरूरी क्यों है? जी, मैं जवाब देता हूँ आपको कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर फिल्मों से नहीं आया। 3 एक्ट स्ट्रक्चर जो है वो लिटरेचर से आया। जो आप पुराने शेक्सपियर के नाटक देखेंगे तो उसमें 3 एक्ट स्ट्रक्चर है, और ये हमने लिटरेचर से लिया है, ये फिल्म से नहीं आया। अच्छा, 3 एक्ट स्ट्रक्चर के अलावा 2 एक्ट स्ट्रक्चर भी होता है, 4 एक्ट स्ट्रक्चर भी होता है। कोई एक नए फिल्म राइटर जिन्होंने 7 एक्ट स्ट्रक्चर दिया है। तो एक्ट स्ट्रक्चर की हमको यूं कोई जरूरत नहीं। अगर आप किसी भी 1 एक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है, स्ट्रक्चर की हमें क्यों जरूरत है? जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रक्चर की हमें इसलिए जरूरत होती है क्योंकि देखिए, नॉवेल है कोई जरूरी नहीं है। मोहन राकेश जो हिंदी के बहुत बड़े राइटर है, उन्होंने एक नॉवेल ऐसा लिखा कि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, इस तरह से उन्होंने लिखा। देयर आर फिल्म्स, देयर आर एक्सपेरिमेंटल सिनेमाज, देयर आर सरियल फिल्म जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बट 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्यों इतना पॉपुलर है? उसका कारण ये है कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर में एक ऐसी चीज होती है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है जो हर किसी को बहुत समझ में आ जाता है, जो हर किसी को एक्सेप्ट करने में आसानी होती है। अगर कुछ कई जगहों पे कई देशों में 2 एक्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉपुलर है, क्योंकि हमारा मापदंड, हमारा जो बचपन है या हमारा जो कल्चर है, उसमें कहीं ना कहीं 3 एक्ट स्ट्रक्चर की कहानियां हमारे आसपास ऑलरेडी हम बचपन से सुनते आए हैं, इसलिए हमें 3 एक्ट स्ट्रक्चर हमारे करीब लगता है। पर अगर कोई 4 एक्ट स्ट्रक्चर दे दे तो शायद हमें वो बोरिंग लगेगा, पर किसी और कंट्री के लिए, किसी और लोकेशन के लिए 4 एक्ट स्ट्रक्चर कामयाब हो सकता है। तो एक्ट स्ट्रक्चर में कोई थंब रूल नहीं है, आप इस रूल को बस समझिए और इस रूल को ब्रेक कर दीजिए।
बहुत सारे लोग जो है इस रूल को बिल्कुल ही दकियानूसी और पुराना किस्म का मानते हैं. I am from a film school where people don't follow the structure at all. They Yes, sir. Same they here. are actually they don't believe in structure and they are making experimental cinema. But when they are making experimental cinema and they are coming out from the film school, nobody are accepting them because nobody can understanding that or familiar with their structure. So if we are going to make in a different kind of structure, yes, we can make and we should make if you want. But the thing is, there is a common thing where a common people can connect, a common man can connect, or a normal person can connect. That gives the 3-act structure. The film we have seen in 1970, Abbas Kiarostami's short film, which was very famous and broke the completely the जिसे कहते हैं so called scenario of the filmmaking. Totally broke that scenario and established a different kind of pillar of cinema. So I can maybe मैं आपका आंसर दे पाया होगा और आपको मेरे ख्याल से आपको satisfactory आंसर मिला होगा. मैं चाहूँगा जी बहुत शुक्रिया. मैं चाहूँगा कोई और कोई क्वेश्चन हो तो. सर मुझे डाउट है सर, मैं जयति गुप्ता बोल रही हूँ सर. प्लीज मुझे शेयर करेंगे स्लाइड समबडी इज अ कैरेक्टर और थोड़ा सा मुझे एग्जांपल्स का हेल्प करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन है. somebody is a character का somebody is a character. Somebody can anybody. It can be you or it can be any old man. A character जिसकी फिल्म हम देखने जा रहे हैं, जिसकी कहानी हम सुनने जा रहे हैं. It can be an old lady. It can be a old lady who sells vegetable. If an old lady sells vegetable, so एक मेरे पास में एक इमेज बन गया ना. अच्छा सब्जी बेचने वाली औरत है जो बहुत बूढ़ी है, तो मेरे सामने उसका एक कैरेक्टर बन गया, दिखाई देने लगा मुझे वो कैरेक्टर. राइट. अब अगर मैं कहूँ ओल्ड लेडी तो इट कैन बी एनी ओल्ड लेडी. पर अगर मैं कहूँ कि वेजिटेबल सेलर 65 ईयर ओल्ड वेजिटेबल सेलर, तो मेरे सामने एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बना. तो somebody is the character, wants something, what she wants, what that vegetable seller wants. She wants to go his grandkid's house, but there is no bus. Kind of. Maybe आपको आंसर मिला होगा. So somebody who में से क्या होगा? What something doing what? ये थोड़ा सा आप हाईलाइट करेंगे. देखिए somebody कैरेक्टर है, वो क्या करने वाला है, वो क्या चाहता है, क्या उसकी वांट है, वो डूइंग वॉट है ना. वांट समथिंग, वो क्या करने वाला है, क्या वो गांव जाने वाला है, क्या वो पढ़ाई करने वाला है, क्या वो कहीं और किसी से मिलने जाने वाला है, ये उसकी वांट है. जैसे देखिए जहांगीर हमारा कैरेक्टर है, 10 साल का है. वो क्या चाहता है, सऊदी अरेबिया जाना चाहता है. ये उसकी वांट है, ये वो चाहता है, ये उसका गोल है, उसका लक्ष्य है. पर उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके पास पासपोर्ट नहीं. ये उसकी बात. आपको समझ में आया होगा मेरा ख्याल है. थैंक यू सो मच सर. क्या किसी ने फकीरा मोहन जी ने लिखने के हिसाब से अगर सॉरी सर जी सर, अगर लिखने के हिसाब से अगर हमें कोई मूवीज फॉलो करनी है कि मूवी फॉलो करते हुए उसका स्क्रिप्ट डिकोड करते हुए अगर हम लिखना चाहते हैं, तो कोई भी पुरानी या नई मूवी कोई आप सजेस्ट कर सकते हैं जो राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस रखता हो या कुछ अलग होता हो, या हम प्रैक्टिकली उसे देख के समझ सकते हैं या समथिंग लाइक दैट. जी हिंदी सिनेमा में तो आप गाइड मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जिसने स्ट्रक्चर को या उसने बहुत अच्छे से, क्योंकि देखिए गाइड एक ऐसी फिल्म थी जिसने लगभग हर तरह के तबकों में और हर तरह के लोगों को जो है वो समझाने में, अपना आइडिया देने में, जबकि वो एक बहुत बड़ा आइडिया कोई दे रही थी, तो उन्होंने इतने आसानी से रखा. मेरे ख्याल से मुझे अभी गाइड की याद आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ पुरानी फिल्मों में गाइड है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फोटोग्राफ जो है अभी रिसेंटली ही लॉकडाउन के दौरान देखी थी, वो भी अगर आप गौर करेंगे उसमें बहुत सिंपल तरीके से एक बड़ी अनछुई कहानी कही गई है. जी बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है. इट्स वेरी सब्जेक्टिव एंड आपको देखते देखते आपको समझ में आएगा कि कौन सी कहानी आपकी है और कौन सी कहानी जो है वो आपके लिए है, या कौन सी कहानी के आप करीब पाते हैं अपने आप को.
तो आप ये समझ आप जैसे जैसे फिल्में देखते जाएंगे, हर कोई फिल्म आपके लिए नहीं बनी है और हर कोई किताब आपके लिए नहीं बनी है। कुछ स्पेसिफिक किताबें हैं जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको अपनी जो आपके करीब होगा। मैंने कोई किताब एक पढ़ी जिसमें गांव का बहुत जिक्र था और जिस तरह के कैरेक्टर का जिक्र था, मैंने क्योंकि उस तरह के कैरेक्टर को देखा है तो वो किताब जो है मुझे बहुत अपने करीब लगी। मुझे लगा हाँ ये जो है ये मुझे विजुअली मेरे करीब है। तो आप ऐसे किताबें या ऐसे फिल्में देखने की कोशिश कीजिए जो आपकी विजुअली आपको करीब हो, आपके बचपन के करीब हो, आपके उस तरह के कैरेक्टर्स के आपके करीब हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि फ्रांस की कोई कहानी हो और वो बिल्कुल लोकेशन से बिल्कुल खारिज हो। इट कैन बी अ डिफरेंट लोकेशन ऑल टुगेदर एंड फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, और इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो, बट the sorrow or the we can say the unhappiness or uneasiness or discomfort is very close to you or very similar to your society. So it can be, it does not depend all not always depend on a location, on a people or same country, same भाषा। और जरूरी नहीं है कोई भी किसी मैथिली के व्यक्ति को हो सकता है कि कोई जो है फ्रांस की फिल्म जो है बहुत करीब लगे अपनी, क्योंकि उनकी सिचुएशन फिलोसफिकली सेम हो सकती है और सोसाइटी। विजुअल डायरी के बारे में कुछ और था कि हम जब भी कोई चीज लिखते हैं, जी जब भी हम कोई चीज लिखते हैं, चाहे वो पोइट्री हो, कहानी हो या फिल्म की स्क्रिप्ट हो, तो ये कब डिसाइड कर लिया जाए या कब एडिटिंग में रुका जाए या कब ये सोचे कि बस अब इससे बेहतर नहीं हो सकता या यही मेरा बेस्ट है, वो रुका कहाँ जाए? क्योंकि ऐसा होता है अमन कि जितने बार उसको पढ़ा जाए उतने बार ऐसा लगता है कि नहीं ये स्कोप और है बेटरमेंट का, इसमें और ऐसा कर सकते हैं, तो वो कभी खत्म ही नहीं होता। कब समझा जाए कि दिस इज द एंड और यही फाइनल प्रोडक्ट है? इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कैसे शुरू किया जाए। खत्म करने के भी बहुत सारे तरीके, पर कैसे शुरू किया जाए मैं ये बता सकता हूँ आपको कि सबसे पहले तो जिसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे भी कहते थे कि ऐसे लिखे आप कि जैसे आपको कोई ख्याल ही नहीं है कि आप इसको कभी एडिट करने वाले। आपको ऐसे लिखना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी इसे जो है आपको लिखते वक्त एडिट नहीं करना है। आपको जो है बिल्कुल रफ्तार से एक फ्लो में लिखना है। वो ऐसा कहते थे कि ऐसा लिखो जैसे आप नशे में ऐसा लिख रहे हैं। तो लिखते समय जो फर्स्ट ड्राफ्ट है आप बिल्कुल सारी चीजें छोड़ के कि इसमें मात्राओं की, वर्तनी की क्या गलतियां हैं, वो सब चीजों को छोड़ के उसके सेंटेंस फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, विजुअल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, कहीं एडजेक्टिव आ गया तो आने दीजिए। आप अपने आप को कंप्लीटली फ्री रखिए और उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। जब आप इस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इससे अब आप तुरंत एडिट करने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें चली जाएगी, इमोशंस चली जाएगी। तो आप हमेशा, हम लिखने के बाद में कुछ दिन रुकते, उसको फिर से देखते। स्क्रिप्ट लिखना है, कहानी लिखना है तो 3 घंटे की बात या 3 दिन की बात या 30 दिन की बात, पर 30 दिन में कहानी कंप्लीट नहीं होती। उसको 30 दिन लिखने के और 30 दिन तक भूल जाना होता है, ताकि आप जो है, क्योंकि जब आप लिखते तो आप कोई एक और व्यक्ति होते क्रिएटिवली, और जब आप 30 दिन बाद एक नए नजरिए के साथ जब उस स्टोरी को देखते तब आप उसको एडिट करना। उसको एडिट करने के लिए वक्त दीजिए, तुरंत एडिट मत कीजिए। तीसरी चीज कि अगर आप उसको किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को नजरिए को लीजिए, किसी और को भेजिए कुछ समय बाद में, जब आपको लगता है कि इसे तो और सुधारने की जरूरत है, तो आप किसी और को भेजिए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए। वो बता पाएंगे कि हाँ इसे शायद और सुधारने की जरूरत नहीं है। या स्क्रिप्ट को देखिए, आखिरी बात, इसके स्क्रिप्ट को हम इतना समझते हैं कि स्क्रिप्ट एक ढांचा है, एक संरचना है, जिसके एक हम आउटलाइन खींचते हैं जब हम शूट करने जाते हैं। क्योंकि मैंने काफी फिल्में शूट की है, हम जो लिखते हैं उससे वो बिल्कुल ही इतर और वो डिफरेंट विजुअल होते हैं जो पैदा हो चुके होते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने जिस लोकेशन की रेकी की है उस दिन, जिस दिन आप शूट करने जाओगे उस दिन हवा चल रही होगी, आपके स्क्रिप्ट में तो कोई हवा नहीं। तो एक ये चीज है कि आपको समझना होगा कि उस दिन लोकेशन पे क्या है जो आप अपनी फिल्म में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, मैं अपना अनुभव साझा करता हूँ। तो एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें एक बच्चे की कहानी थी और हम लोग वो घर ढूंढ रहे थे और मैं बहुत घूमा, मैंने बहुत सारे लोकेशन देखे पर वो नहीं मिला। पर मुझे एक घर मिला जिसके सामने कुआं था, और मैंने जो मेरे कैमरामैन थे, आज वो इंडस्ट्री के बड़े कैमरामैन हैं,
और मैंने उनसे कहा कि भाई ये रोको, ये यहाँ पर चाहिए मुझे। तो उसने कहा कि देयर इज नो कुआ इन योर स्टोरी विमल। सो आई सेड नाउ देयर विल बी अ कुआ इन माय स्टोरी, आई वांट अ कुआ देन। सो विजुअली वो हो सकता है कि आपकी कहानी को सपोर्ट करे, और वो कुआं उस कहानी में हमने शूट किया, वो कहानी का एक बहुत सी मतलब उसका जो है एक बहुत अच्छा हिस्सा बना। जी सर विजुअल डायरी के बारे में पूछ रहा था मैं। जी हाउ कैन द विजुअल डायरी हेल्प इन डेवलपिंग ए स्टोरी विजुअली? बिकॉज हम जो भी स्टोरी की बात कर रहे हैं ये सारे ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के लिए ही है, या तो फिल्म है या तो टेलीविजन के प्रोग्राम है जी। तो विजुअल डायरी किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं? सो द थिंग इज, जैसे मैंने आज आप लोगों को बताया कि कैसे हम विजुअल्स को लिखते हैं। अगर आप जैसे मैं अक्सर बाकी स्टूडेंट्स को भी कई बार करवाता हूं कि वो आज दिन भर बाहर जाएं और वो 5 विजुअल लिख कर ले आए जो उनको दिखाई दिए। तो आप इस चीज को बहुत केयरफुल इस बात को समझिए कि आप जब बाहर जाएंगे और 5 विजुअल लिख के लाएंगे, ऐसा कभी दोबारा ऐसा विजुअल नहीं मिलेगा, उससे हमेशा डिफरेंट विजुअल मिलेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने आसपास के विजुअल्स को लिखना शुरू करें। जो भी आपको दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, आप उसको ध्यान से लिखना शुरू करेंगे तो आप इतने स्पेसिफिक उसके डिटेल में जैसे जैसे जाते जाएंगे, आप अपने आसपास की चीजों को देखना शुरू करेंगे और उसको स्पेसिफिकली। मैंने एक जगह एक किताब के ऊपर एक जगह एक कोट पढ़ा, लिखा था, चींटियों की एक लाइन बनी हुई थी और उसके ऊपर लिखा था कि दुबली चींटी सबसे आगे थी। तो दुबली चींटी सबसे आगे थी, कैरेक्टर स्पेसिफिक कर देना हो गया। हालांकि ये कविता की लाइन है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि दुबली चींटी को कहा गया, और शायद मुझे दूर से दुबली दिख रही हो। तो ये एक विजुअली आप उसको देखने की कोशिश करें। और कई बार ऐसा होता है, एक आखिरी बात, एक बहुत जरूरी बात, कि किसी एक जगह को लगातार ऑब्जर्व करें। एक गार्डन, एक घर, एक पेड़, आपको समझ में आएगा अगर लगातार आप उसे 20 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं। या अक्सर ये पेंटर्स करते हैं क्योंकि वो विजुअल मीडियम है। पेंटर्स एक ही पेड़ को बहुत दिनों तक ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो एक गए और एक फोटोग्राफ खींच लिया, अभी हम फोटोग्राफ खींच लेते हैं, but they observe, or they used to observe many days, and then they used to make a painting. So if you are observing something, a certain thing, again and again, so you'll penetrate it, or you'll study it. You are not going to read it or watch it, you're going to study it. Or maybe after a point, after some days or many months, maybe you are going to meditate on that visual, or you will get something else which nobody can get it in their lives. Like Mona Lisa, nobody can. There are a lot of people are smiling and there are a lot of people are upset and smiling, but Mona Lisa is Mona Lisa. So it's a 8 year, not 8 year. It's a many years, I think, in Mona Lisa. So this is the thing. It's not people actually read things or watch things and move on. And some people are just study it, but they are masters who are meditating on that. So आई थिंक आपका मुझे आंसर दिया होगा। आप आसपास की चीजों को लिखना बहुत जरूरी है। सर विमल सर चैट बॉक्स चेक करिएगा। सर मैंने आपको शेयर किया है आपसे। सर मेरा विमल सर, जी आप सर चैट बॉक्स चेक करिएगा एक बार, मेरे आपको पर्सनली भेज। जी हाँ, थैंक यू भानु जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपना कोई इंसिडेंट लिखना है, और मैं भानु सर जी। हाँ जी सर। मैं सर पार्टिसिपेंट्स को एक ईमेल आईडी देना चाहता हूं, पर क्या इस ईमेल आईडी को बाद में दिया जा सकता है? मैं आपको हाँ जी दिया जा सकता है सर। मैं आपको भेज दूं और पार्टिसिपेंट को ये चला जाए जी सेशन के बाद में। तो जी तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि आप लोग को एक काम करना है कि आप लोगों ने आज जो हम लोगों ने जो सीखा है, हम लोगों ने जो जाना है, उस पर आपको एक छोटी कहानी लिखनी है जिसमें बिगिनिंग मिडिल एंड हो, जिसमें एक प्रॉब्लम हो, एक वांट हो, एक कैरेक्टर हो। जिसमें एक कैरेक्टर हो, हु डूइंग व्हाट एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये हो, और उसमें बिगिनिंग मिडिल एंड हो। कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कल परसों जो आपके साथ में हुआ है वो हो सकता है। सर आपसे शेयर कर दिए जी, आपसे शेयर कर दिए सर चैट बॉक्स में। जी मैं चाहूंगा कि आप उसको मेल में हमें भेज दें, तो हमारे पास में इसका डेटा रहेगा सर। और
दूसरी चीज की आप लोगों को ईमेल आईडी जो है मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोगों को ईमेल आईडी मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप आखिरी क्वेश्चन सिर्फ मुझे पूछ लीजिए, फिर इस सेशन को हम एंड करें। सर राइटर्स ब्लॉक कैसे हटाया जाए? जो जी स्टक हो जाते हैं, कई बार कहानी ही नहीं आगे बढ़ पाती। जी सर सॉरी सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। और सर आप 3-4 ऐसे स्क्रीन प्लेस भी हों जो आप लोगों को सजेस्ट कर पाए पढ़ने के लिए और नेट पे मिल पाए कि जो अभी क्वेश्चन पूछा है आप जी फिर से बोलिए, माफ कीजिए आपका नाम भी। मैं कह रही थी कि कई बार काफी फ्लो में चीजें जा रही होती है, स्टोरी पता होता है कि क्या होना है क्या नहीं होने वाला है, कई बार एक पॉइंट पे जाके अटक जाता है, उसके बाद आपको नहीं पता होता कैरेक्टर्स के साथ क्या करना है, या आपको ये पता होता है कि इसके दूसरे पार्ट में क्या है, तो बीच में क्या करना है वो नहीं पता होता, दोनों को कैसे जोड़े या ट्रांजिशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं अपने अनुभव से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है फिल्म लिखने का, तो राइटर्स ब्लॉक जो चीज है उसका मतलब है कि आपने गलत कहानी उठाई है, वो आपकी कहानी नहीं है। बहुत सारी कहानी हैं मेरे पास में, बहुत सारी कहानियां हैं जो अधूरी रह गई है, जो अधूरी रह ही जाएंगी। उससे मुझे लिखकर समझ में आया है कि वो कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती, मे बी क्योंकि मुझे उसका अनुभव नहीं है या उसके इमोशन को मैं जरा भी नहीं जानता हूँ, इसलिए वो ब्लॉक है। जिस चीज को मैं नहीं जानता हूँ उस चीज को लिखना बहुत मुश्किल है जी। और तो अगर आपको राइटर्स ब्लॉक आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने गलत कहानी उठाई है या गलत वक्त पर उठाई है। पर जैसे आप प्रोफेशनली अगर राइटिंग करेंगे तो हर कहानी आपके दिल से नहीं निकलेगी ना, मतलब कई बार ऐसा होगा कि वो मैकेनिकल होगा, मतलब आप रोज वही काम करेंगे तो कई बार जाके वो क्रिएटिविटी तो होगी ऑफ कोर्स, बट देन कई बार ऐसा होगा कि आपको खत्म करना है, आपके पास डेडलाइन है, आपको देना है, सामने वाले का ये गाइडलाइन है, ये रिक्वायरमेंट ही है, उसके पैरामीटर्स में आपको लिखना है, आप बहुत ज्यादा खेल नहीं सकते कैरेक्टर्स और कहानी के साथ, तो वो सारी चीजें मतलब फिर वो अटक जाती हैं कई बार। ऑफ कोर्स वो अटक जाती है और प्रोफेशनली भी अटक अपने लिए कोई कहानी लिख रहे हैं, जो आपने कहा कि वो कहानी मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं इस तरह से अटका भी हूँ और उसके बाद में समझ में आया कि हाँ ठीक है, कहानी तो गलत उठा ली, पर अभी क्या करें, अभी प्रोफेशनली इस कहानी को एंड तक तो पहुंचाना है। तो उसमें एक बड़ी चीज है जिसे कहते हैं रिसर्च। देखिए किसी चीज को मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। अगर कोई कहानी है मध्य प्रदेश की, भोपाल की, मैं उसे बहुत आसानी से शायद लिख सकूंगा क्योंकि मैं भोपाल को जानता हूँ, मैं जहां रहा हूँ, जैसे मैं कलकत्ते में मैंने पढ़ाई की, तो मैं कलकत्ते में कोई कैरेक्टर या कहानी लिखनी तो मैं उसे जानता हूँ, तो मैं उसे लिख सकूंगा। तो मैं किसी चीज को क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ? क्योंकि मैं उसे नहीं जानता हूँ। लेट्स नो इट, सो लेट्स रिसर्च अबाउट इट एंड जस्ट नो इट मोर, सो ही विल राइट इट मोर। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि आप नहीं जानते इसलिए वो ब्लॉक है। और आप जान जाएंगे तो आप उसे जानिए, अखबारों के जरिए या किसी से मिलके या उस जगह पे जाइए, उसे जानिए जितना हो सकता है, और सिर्फ टेलीविजन से नहीं या सिर्फ इंटरनेट से नहीं, और भी दूसरी चीज जगह की उसको और पर्सनली जानने की कोशिश कीजिए। तो वो आप जितना ज्यादा जानते जाएंगे, मे बी जानेंगे, और उसके बाद में कुछ दिनों बाद जब वो जानने का जो है थक्का सा जम जाएगा, तब शायद आपके अंदर से वो कहानी जो है पनप जाएगी। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके, यस सर, लास्ट क्वेश्चन। ओके, सॉरी क्योंकि टाइम हो रहा है। जी भानु सर, आप बोल दीजिए पहले। हाँ जी, क्वेश्चन पूछ लीजिए मैम जो पूछ रहे थे। सर सीरियल की स्टोरी और फिल्म की स्टोरी में क्या बड़ा डिफरेंस होता है? देखिए बेसिक डिफरेंस ये है सीरियल की स्टोरी में कि सीरियल एपिसोडिक होता है, सीरियल 400 या 500 एपिसोड का होता है। सीरियल में कैरेक्टर आर्क जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो कैरेक्टर सीरियल इसलिए बना है ताकि हम जो है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है कैरेक्टर के साथ बहुत लंबे समय तक रहना चाहते हैं, इसलिए सीरियल जो है बना है। और फिल्म की स्टोरी जो होती है वो 3 घंटे की होती है, तो उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। और
जो सीरियल है उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें हर एपिसोड का अपना एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जो पूरे एपिसोड की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जो पुश होते जाती है, पर हर एपिसोड की अपनी प्रॉब्लम होती है। और उसी के ही इसको अगर आप छोटा कर दें तो फिल्म में ये होता है कि फिल्म की एक अपनी पूरी एक प्रॉब्लम होती है और हर सीन की एक प्रॉब्लम होती है, तो काफी डिफरेंट है स्ट्रक्चर वाइज। जी भानु सर, अब आप जी सर, खत्म करना होगा, कंक्लूड करते हैं सर। जी जी। और सर मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूं कि इतना इंटरेक्टिव और यूजफुल और एजुकेटिंग सेशन आपने कंडक्ट करा जी इस इवेंट के लिए। तो सर पूरी एमसीयू की टीम से आपको थैंक्स। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भानु सर और हाँ जी। तमाम शिक्षकों का जिन्होंने मुझे सुना, और आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड आई होप it will become your part of daily life and you'll write something and you'll grow more in your life and your profession. So thank you so much. Thank you very